Very good morning, everybody. Question number 2, depreciation. Question number 2 is on page number 9, depreciation. Please read it quickly. Which method they are following? अरे पूछने तो दो यार. मेथड दो प्रकार के होते हैं इस चैप्टर में. One is called as method of calculating depreciation. Second is called as method of accounting for depreciation. मुझे पूरा बोलने तो दो. So which method of calculating depreciation? कहाँ दिया है? सेकेंड लाइन में दिया हुआ है his accounting year ends on 31st of December. So that is the first information that we require. They are following calendar year. 31st December is the end of accounting year. Depreciation at the rate of 10%. यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो 10% में ना पर एनम वर्ड नहीं दिया है, नहीं भी दिया रहेगा पर एनम. यू हैव टू एज्यूम इट टू बी पर एनम. और आपको दिया हुआ है डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन इनिशियल कॉस्ट. व्हाट डू मीन बाय ऑन इनिशियल कॉस्ट? मतलब which is the method that they are following? Original cost method. Second question, for the purpose of accounting, there are two methods altogether. One is called as a normal method of depreciation, other is the provision method of depreciation. Which of the two they are following? कहाँ दिया हुआ है? लाइन नंबर बताइए. सेकेंड एंड थर्ड लाइन एक कंटिन्यूअस स्टेटमेंट है. अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, प्लीज मोमेंट नहीं करो. कुछ करना है एसी का कर लो. खाली ये सब 10 बजे से पहले नहीं हो सकता था क्या? आई जस्ट वंडर. कर लो प्लीज. नहीं करना है तो हेड मूवमेंट मत करो ना यार. गेट डिस्टर्ब्ड यार. हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू टेल? Second and third line, depreciation at the rate of 10% on initial cost has been charged to profit and loss account. Has been charged to profit and loss account मतलब क्या? Which account do you close and transfer that in profit and loss account is depreciation account. आप जब भी जर्नल एंट्री पास करते हो तब क्या करते हो? डेप्रीसिएशन अकाउंट को डेबिट करते हो. विच अकाउंट टू बी क्रेडिटेड हम थोड़ी देर के बाद में बात करेंगे. और जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हो, वेदर यू आर फॉलोइंग नॉर्मल मेथड ऑफ अकाउंटिंग और यू आर फॉलोइंग प्रोविजन मेथड ऑफ अकाउंटिंग, इन बोथ द मेथड द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज एग्जैक्टली द सेम. दुनिया का कोई भी मेथड रहेगा, depreciation can't become my income. In any method of accounting that you like to follow, depreciation will be your expenditure and therefore your depreciation account will be debited. Which account credit? We'll talk in 2 minutes. बट डेबिट कौन सा अकाउंट करने का, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. डेप्रीसिएशन इज द लॉस, इट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड देयरफॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट को आप डेबिट करते हो. फिर आप क्या करोगे? ये डेप्रीसिएशन अकाउंट को क्लोज कर दोगे. क्लोज करोगे तो आप क्या करोगे? नाउ द डेप्रीसिएशन अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड. पहले डेबिट किया था, इट इज नॉमिनल अकाउंट. आपको फाइनल अकाउंट से याद होना चाहिए. इन फाइनल अकाउंट चैप्टर वी हैव डन इट इन डिटेल कि जो भी नॉमिनल अकाउंट होता है उसको क्लोज करने के लिए वी पास क्लोजिंग एंट्री एंड दैट क्लोजिंग एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट. तो वहां जो स्टेटमेंट दिया है उसका मतलब क्या है? क्या दिया स्टेटमेंट में? दोबारा पढ़ रहा हूं. depreciation at the rate of 10% on initial cost has been
charged to profit and loss account. So he is talking about this entry, second entry, कि जहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करते हो. अब कौन सा अकाउंट आप क्रेडिट करते हो will depend upon which method of accounting you are following. Suppose you were following normal method of accounting, तब कौन सा अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट करोगे? Fixed asset account. So it is depreciation account debit to machinery account. You will credit the fixed asset account. But ये लोग कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं? क्लियरली दिया हुआ है, credited to a separate depreciation provision account. और जैसे आपको दिया है, it is credited to provision for a depreciation account. What does that mean? They are maintaining fixed asset account at which value? Original cost. They want to show in their books of accounts what is the total original cost of the asset, and they also want to show what is the total depreciation charged on fixed asset from the date of purchase till the balance sheet date, accumulated debris. So this first paragraph makes it very clear they are not following. Am I audible in the last bench? So first paragraph makes it very clear they are not following normal method of accounting for debris. They are following प्रोविजन फॉर डेप्री मेथड. और प्रोविजन मेथड में एक ही चेंज है कि आप जब डेप्री का एंट्री पास करते हो, हम जनरली क्या करते हैं? मशीनरी अकाउंट में लिखते हैं बाय डेप्री. नाउ कैन आई राइट इन मशीनरी अकाउंट एनी मोर? नो, आएगा बाय डेप्री बिकॉज माई जर्नल एंट्री इज depreciation account debit to provision account. but by depri आप कौन से account में लिखोगे? provision account में, because of which your machinery account will continue to appear at its original cost year after year, every year. उस account में कभी भी depreciation का एंट्री नहीं आएगा. That is the only point that you have to fit into your mind in case you have forgotten it, कि मशीनरी अकाउंट में सिर्फ कॉस्ट आएगा. और जब आप मशीनरी को बेचोगे, when you sell that, then cost of the machinery which is sold, you will have to transfer that in a separate account called as machinery disposal account. Disposal account is mandatory under provision method. ये प्रॉब्लम में तो क्लियरली बोला है प्रिपेयर एसेट डिस्पोजल अकाउंट. नहीं भी बोला होगा, then also it is mandatory, it is compulsory to prepare machinery or asset disposal account under provision method. सब देख सकते हो ऐसे प्रॉब्लम में 3 अकाउंट रहेंगे. which 3 अकाउंट कंपल्सरी? पूछा है कि नहीं पूछा है? 3 अकाउंट कंपल्सरी है. फर्स्ट अकाउंट इज द फिक्स्ड एसेट अकाउंट, मतलब ये प्रॉब्लम में मशीनरी अकाउंट. सो आपने अगर मशीनरी अकाउंट ड्रॉ किया है तो उधर ब्रैकेट में लिखने का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यू विल राइट इन द ब्रैकेट, एट कॉस्ट. This is a reminder that you should give it to yourself every time under provision method. At cost लिखा, फिर मशीनरी अकाउंट के ऊपर ये 3 इंफॉर्मेशन लिख दो जो हम हमेशा लिखते हैं. 10% per annum is the first one.
Original cost method is the second one. Year ending 31st December is the third one. ये तीन बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप हर प्रॉब्लम में लिखते हो. दिस इज योर अकाउंट नंबर 1. अभी आपको सोचना पड़ेगा कि यार मैं ये मशीनरी अकाउंट हाफ पेज का करूं कि फुल पेज का करूं. सी एग्जाम में ये जजमेंट आपको ही लेना है. That's the reason now I am not telling you what format to be drawn. जब मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाए थे तो मैं ही आपको बताता था कि भाई आपको फॉर्मेट फुल पेज का करना है कि आधा पेज का करना है कि 2 पेज का करना है. ये डिसीजन अब आपको लेना है. कैन एनीबडी टेल मी in this problem you have to prepare machinery account for how many years? Is it given in the problem or is it not given in the problem? Not given. तो आपको देखना पड़ेगा जितने साल का ट्रांजैक्शंस दिया है उतने साल का आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा. कैन यू प्लीज मेक आउट द ट्रांजैक्शंस आर गिवन फॉर how many years? Which 3 years? 2012. Should I write 12-13? Why? Because 31st December is a calendar year. 2012, 13, 14. So what's your judgment? What should be the size of machinery account? Half page. देख एग्जाम में सोचने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना. तुम्हारे बाप का पेज नहीं है. वापड़ो बिंदास. फुल पेज का 3 पेज पे 3 अकाउंट खोल दो. कौन रोक रहा है तुमको? इफ यू कैन हैव जजमेंट योर सॉल्यूशन विल लुक बेटर. इट विल लुक मोर टाइडी. लेकिन कंफ्यूजन आता है तो 5 मिनट इस चीज पे इन्वेस्ट मत करना एग्जाम में कि व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द फॉर्मेट. आई थिंक हाफ पेज शुड बी इनफ. सेकेंड इज provision for a debris account. Many times half page का भी definition student wise different हो जाता है because I can see the size of the notebooks is quite different. It is your judgment. 12 से 15 लाइन चाहिए. 3 साल का अकाउंट है क्योंकि इसके अंदर है ना सेल का एंट्री नहीं आएगा. इसके अंदर डेप्री का एंट्री भी नहीं आएगा. बस आप परचेज का एंट्री पास करोगे. सेल रहेगा तो यू विल ट्रांसफर इन डिस्पोजल अकाउंट और बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन रहेगा. मतलब 1 साल के लिए 5 लाइन, 4 या 5 लाइन. 3 साल के लिए 12 से 15 लाइन चाहिए. सेकेंड अकाउंट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड योर थर्ड अकाउंट इज मशीनरी एसेट डिस्पोजल अकाउंट. नहीं लिखने का, लोग पागल हैं ये लोग. यू शुड राइट मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट इज योर अकाउंट नंबर 3. आई थिंक ईच ऑफ द 3 अकाउंट कैन बी फॉर हाफ पेज और उसके पीछे आपका वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा. प्रोविजन थोड़ा मैं ज्यादा डिटेल में कर रहा हूं. सम स्टूडेंट्स वे लेट एडमिशन आई रिमेंबर and this is very likely to come in the exam. Provision is the most likely method out of this particular chapter. चलिए, so with that start करते हैं everybody. Year number 1 is 2012. So 2012 दोनों साइड पे लिख दो. 2 अकाउंट के अंदर कौन से अकाउंट में नहीं आएगा? डिस्पोजल, क्योंकि देर इज नो सेल ऑफ मशीनरी इन द ईयर 2012. तो दोनों साइड पे 2012 लिख दो. मशीनरी अकाउंट में भी लिख दो एंड प्रोविजन अकाउंट में भी लिख दो. स्टार्ट करते हैं. हरिओम हरिओम परचेस्ड 6 machines at rupees 15,000 each. चलो, very simple everybody. What would you write in machinery account? Jan 1 in the date column everybody. machinery account में लिखो Jan 1. फिर क्या लिखोगे आप? To bank account. 6 बार लिख डालो. 6. अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं करो. So write down 90,000. बट फिर आपको ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा 6 into 15,000. ओके, अब मुझे खाली पढ़ के इतना बताओ कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का डेट क्या है? 1 Jan 2013.
मतलब is it in the same year or next year? मतलब can I say this year is over? So what do you do at the end of the year? Charge डेप्री. तो हम लिखेंगे बाय डेप्री. नहीं, बाय डेप्री लिखेंगे. मैंने थोड़ी बोला मशीनरी अकाउंट में लिखो. ये तो मैं पूछने वाला था. तो क्या मेरा पूरा फ्लो तोड़ देते हो. मैं कैसे करने वाला था. वी विल राइट बाय डेप्री इन विच अकाउंट, ऐसे पूछने वाला था. कैन यू टेल मी विच अकाउंट? Provision account. Go to provision account, credit side. Year ending is December. So write down December 31. By debtor account, you will write in provision account, and that will be your working number 1. Exam में working notes are not optionals. This carry marks. You will have a lot of temptation to do this orally. तुम लोग अभी 1 जनवरी है, 12 महीने का करने का है, 90,000 का 10%, 9,000, कैलकुलेटर भी अलाउड है. बहुत टेम्पटेशन रहेगा अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना और अच्छे से वर्किंग बनाना. सो राइट डाउन depreciation on 31st December 2012. It is 10 upon 100 into 90,000 into 12 by 12. Why is it for 12 months? 1 जनवरी को खरीदा है, विच इज फर्स्ट डे ऑफ द ईयर. कितना आया अमाउंट एवरीबडी? 9,000 आया. प्रोविजन अकाउंट में लिखो बाय डेप्री के सामने 9,000. ओके, अब क्या करो, पहले मशीनरी अकाउंट क्लोज करो. बोलो मशीनरी अकाउंट में क्या आएगा एवरीबडी? December 31 को आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन. कितना आएगा अमाउंट? 90,000. तो फर्स्ट ईयर को प्लीज क्लोज करो. मशीनरी अकाउंट का ईयर नंबर 1 दोनों साइड का टोटल हो जाएगा 90,000. ईयर नंबर 2 स्टार्ट करो. दोनों साइड पे लिखो 2013. वी आर स्टिल इन मशीनरी अकाउंट. दोनों साइड पे लिखो 2013. डेबिट साइड पे लिखो Jan 1. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड द अमाउंट यू विल राइट इज 90,000. What is this 90,000? May I know? Original cost. अब प्रोविजन अकाउंट बंद करो. उसका हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा. प्रोविजन अकाउंट विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस. तो क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा, तो आप डेबिट साइड पे लिखोगे December 31 टू बैलेंस कैरीड डाउन. December 31 it is, sorry, which account you are closing my dear? Machinery हो गया. Which is the second account? Is it depreciation account or is it provision for depre? So क्या provision को close करके PL में transfer करोगे? No. Which account you will close and transfer in PL? Depreciation, and we are not preparing depreciation account. Provision account carried down, brought down होता है every year. That's why it is called accumulated debris. So आप लिखोगे to balance carried down. What was the amount please? 9,000. दोनों साइड का टोटल कर दो 9,000. तो आपका प्रोविजन अकाउंट टैली हो जाएगा. फिर आप प्रोविजन अकाउंट में ईयर 2 स्टार्ट करो. दोनों साइड पे आएगा 2013. दोनों साइड पे आएगा 2013. और क्या आएगा प्रोविजन अकाउंट में? ओपनिंग बैलेंस विल कम ऑन विच साइड एवरीबडी? क्रेडिट साइड. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन January 1. प्रोविजन अकाउंट रिमेंबर ऑलवेज हैज credit balance. So buy balance brought down and the amount is rupees 9,000. Okay, so that is the end of first year 2012. Now we come to year number 2. Please पढ़ के बताओ year number 2 में परचेस है कि सेल है? सिर्फ सेल है? आर यू वेरी श्योर? दोनों है. और कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना कि डेट वाइज ऑर्डर में देंगे. ये महाराष्ट्र बोर्ड नहीं है, पप्पू नहीं है, ये इंस्टीट्यूट है. जानबूझ के ऊपर नीचे करके देगा. देखो पहले 2013 दिया है, फिर 2014 दिया है,
फिर थर्ड लाइन में 1 जुलाई 13 दिया है. नेवर एक्सपेक्ट कि ये ऑर्डर में देंगे, ये ऊपर नीचे ही देने वाले हैं. सो वंस अगेन माय क्वेश्चन, 2013 में परचेस है, सेल है कि दोनों है? विच ऑफ द टू इज फर्स्ट? सेल है. विच डेट? हाँ. सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, लिसन टू मी केयरफुली. विच मशीन इज सोल्ड आपको दिया हुआ है. ऑन 1st January 2013 one machine was sold for 12,500. Anybody knows ये 5 में से कौन सा मशीन बेचा है? No, I also don't know. Anyway, it doesn't matter. Why it doesn't matter? क्योंकि पांचों मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट इज सेम. हाँ, अगर ओरिजिनल कॉस्ट अलग होता, ही हैज टू टेल यू कौन सा मशीन बेचा. हियर इट डजंट मैटर. लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली. कि अब सेल होता है तो प्रोविजन मेथड में आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आपको वो स्टैंडर्ड वर्किंग करना पड़ेगा जो आप हमेशा करते हो. सो गो टू द वर्किंग नंबर 2. एंट्रीज तो बाद में आएगा, पहले आपको स्टैंडर्ड वर्किंग करना है. सेल ऑफ वन मशीन, पता नहीं कौन सा, वन मशीन ऑन 1st January 2013. अब 5 में से एक मशीन बेचा है तो वी विल स्टार्ट विथ ओरिजिनल कॉस्ट एस ऑन 1st January 2012. हमने सिर्फ एक की मशीन बेचा है. सो बोलो एवरीबडी, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट? 15,000. डू यू एग्री? हाँ. फिर उसके बाद क्या आएगा बताइए? लेस डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 1. डेप्रिसिएशन ऑन 31st December 2012 1,500. 10% चार्ज करना था. सो यू विल गेट WDV at the beginning of the second year, which is 1/1/2013. That is 13,500. हाँ. नाउ एनीबडी रिकलेक्ट्स? इसके बाद हम जनरली क्या लिखते हैं? डायरेक्ट सेलिंग प्राइस नहीं होता है. करंट ईयर्स डेप्री. विल करंट ईयर्स डेप्री कम? नो. आई एम जस्ट राइटिंग इट कि समझो अगर होता तो लेस करंट ईयर्स डेप्री. जितना भी महीना हमने यूज किया रहेगा उसका डेप्री आएगा. बिकॉज इट इज सोल्ड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, नो करंट ईयर्स डेप्री. यू विल अगेन गेट WDV 13,500. इसको आप किसके साथ कंपेयर करोगे एवरीबडी? नेट. व्हाट डू आई राइट? नेट सेल्स वैल्यू. कितने में बेचा है? 12,500. उसमें हम माइनस क्या करते हैं जनरली? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सेल. किसी के थ्रू बेचा रहेगा, उसका कुछ ब्रोकरेज रहेगा, कुछ कमीशन रहेगा, तो जो भी एक्सपेंसेस आपने इनकर किया रहेगा विदाउट फेल उसको माइनस करने का. सो यू गेट द नेट सेल्स वैल्यू एस ₹12,500. उसके बाद आपका आएगा लॉस ऑन सेल. देयर इज अ लॉस ऑफ ₹1,000 दैट यू हैव सफर्ड. नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली. Under provision method, the first entry there is no change. Why you say first entry there is no change? Is a current year's depri. कोई मुझे बता सकता है अगर current year depri होता, अगर होता तो which account will you write? Provision account. It will never come in the machinery account. Please remember. ये हो गया entry number 1. Now the second entry is not the sales value. Anybody recollects? No, that is wrong. Second entry is the original cost of 15,000 which you will have to transfer from machinery account to machinery disposal account. So second entry
is 15,000 the original cost. Go to your machinery account. Can anybody tell me, मुझे ये जो 15,000 है, what is this 15,000? Is the cost of that machinery which is sold. जो मशीनरी बेचा उसका कॉस्ट है. ये मुझे कौन से अकाउंट से कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है? मशीनरी से डिस्पोजल. कैन यू फ्रेम अ जर्नल एंट्री फॉर दिस? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. तो गो टू योर मशीनरी अकाउंट और उसमें लिखो Jan 1 बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 15,000. तुरंत से पीछे डिस्पोजल अकाउंट में जाइए. डिस्पोजल अकाउंट में आएगा दोनों साइड पे 2013 और डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा टू मशीनरी अकाउंट. टू मशीनरी अकाउंट and that amount is rupees 15,000. This will be your entry number 2. Anybody recollects what is entry number 3? Total depreciation. मतलब मैं बोलूं ये दोनों देख 1500 और ये जो करंट ईयर का डेप्री है ये दोनों को पहले ऐड करने का and that will be your number 3. नंबर 3 में प्लीज रिमेंबर जितना भी डेप्री चार्ज किया रहेगा वी आर टॉकिंग अबाउट एक्यूम्यूलेटेड डेप्री और द टोटल डेप्री फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस टिल द डेट ऑफ सेल. आज तक जितना भी डेप्री इस मशीन पे चार्ज किया है विच इज 1500 plus 0 will be 1500. This total debris you will have to take out from provision account and you have to transfer that in machinery disposal account. Can anybody frame journal entry for this one? प्रोविजन अकाउंट के ऊपर फोकस करो बेटा. प्रोविजन का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, उधर से निकालना है तो प्रोविजन को आप डेबिट करोगे. सो इट इज प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल. गो टू योर प्रोविजन अकाउंट. देयर यू विल राइट टू मशीनरी डिस्पोजल. एवरीवेयर द डेट इज Jan 1. अमाउंट क्या आएगा बताइए? 1500. और इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा डिस्पोजल अकाउंट में बाय प्रोविजन फॉर डेप्री. डेट इज अगेन सेम Jan 1 बाय प्रोविजन फॉर डेप्री और उसके सामने फिगर क्या आएगा बताइए? 1500. यहां तक एवरीबडी? हाँ. नाउ लुक एट योर डिस्पोजल अकाउंट. उसकी ओर देखो, देखते ही रहो. डिफरेंस क्या है बताओ? What is that? WDV on the date of sale. Please remember disposal account के डेबिट साइड पे ओरिजिनल कॉस्ट है, क्रेडिट साइड पे है एक्यूम्यूलेटेड डेप्री टिल द डेट ऑफ सेल. दोनों का अगर आप डिफरेंस करोगे तो ये वाला फिगर आएगा. कौन सा? ये देख, करंट डेप्री के बाद वाला फिगर आएगा WDV ऑन द डेट ऑफ सेल. नाउ एंट्री नंबर 4. सब देख सकते हो 5 एंट्री ऑल टुगेदर जब भी सेल रहेगा. व्हाट इज एंट्री नंबर 4? is about net sales value of 12,500. Anybody can please tell me what is the journal entry I will pass for this 12,500? Bank account debit to machinery disposal account. Disposal account में लिखेंगे by bank account 12,500.
डिस्पोजल अकाउंट में आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट 12,500. Please tell me, will your disposal account tally? How much difference? And that 1,000 is number 5. वही आएगा 1,000. क्यों सेम आया 1,000? क्योंकि WDV कितना था? 13,500. बेचा कितने में? 12,500 में. 1,000 रुपए का डिफरेंस आएगा. क्लोज योर डिस्पोजल अकाउंट. टेल मी, डिफरेंस विल कम on which side? सॉरी, नहीं, डिफरेंस आएगा ना 1,000 रुपए का. वैसे वही 1,000 रुपया लॉस है. कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? लॉस ऑन सेल. so लिखो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट. दिस इज योर एंट्री नंबर 5, the last one. By loss on sale of machinery account, the amount is 1,000. So your disposal account of 2013 will tally at rupees 15,000. Anybody any query in this one? पक्का ना? ओके. अब बताओ 2013 में और कुछ है क्या? परचेस है. सो लिखो मशीनरी अकाउंट में जुलाई 1. मशीनरी अकाउंट में जुलाई 1 to bank account. You are now purchasing the machinery, so it is machinery account debit to bank account. The cost is rupees 28,000. हाँ, आप बताओ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज इन 13 और इज इट इन 14? 14. 13 खत्म हो गया, एक ही चीज बाकी है. Which account you will write? By debris. Provision account. Provision account में जाओ, December 31 you will write there by depreciation account. That will be your working number 3. Working number 3, depreciation on 31st December 2013. अब इसमें कैसे दिखाओगे? ओल्ड 4 मशीन, 5 में से एक 6 थे, 6 में से एक बेच दिया, सो ओल्ड 5 मशीन्स. बोलो उसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? 10/100 into what? Why are you taking 75,000? Because it is original cost method. 10% of 75,000 into 12 by 12 is how much everybody? 7,500. और एक न्यू मशीन भी है ना, we can call it as machine number 7. 6 तो ऑलरेडी था, तो मशीन नंबर 7 का 10% of 28,000, so 2,800 into 6 by 12. 1st जुलाई है, never forget to see the date. कितना आया उसका अमाउंट? 1,400. What's the total debris? 8,900. चलो मशीनरी अकाउंट पहले क्लोज करो. बोलो 2013 में मशीनरी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आएगा 1 लाख. कैसे आया 1 लाख 3? कोई बता सकते हो ओरली? देख 90 था ना, 90 में से एक बेचा 15,000 वाला, तो 75 रह गया, प्लस 28 वाला खरीदा, सो 1,03,000. इट विल बी ऑलवेज ओरिजिनल कॉस्ट. दिस इज ओरिजिनल कॉस्ट. और वैसे ही प्रोविजन फॉर डेप्री, उसका भी क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करो. इसका हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा रहता है, so it is 2 balance carried down. It is 2 balance carried down. How much please? Sorry, 16,400. सब लोग देख लेना प्रॉपरली. सो आपका सेकेंड ईयर भी क्लोज हो जाएगा. डिस्पोजल अकाउंट तो हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं.
चलो फिर बैलेंस को ब्रॉड डाउन करो. मशीनरी अकाउंट अभी थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया 2014 ऑन बोथ द साइड्स इन ऑल द थ्री अकाउंट्स. डिस्पोजल अकाउंट में भी आएगा ना, एक मशीन बेचा है तो अभी से लिख दो ना 2014 इन ऑल द थ्री अकाउंट. और फर्स्ट दोनों अकाउंट में बैलेंस ब्रॉड डाउन करो. मशीनरी अकाउंट में आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,03,000. प्रोविजन अकाउंट में आएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,400. चलो ईयर नंबर 3 एवरीबडी. क्या हुआ ईयर 3 में? परचेस है कि सेल है? So again go to the working, that is working number what? 4. Sale of second machine on 1st Jan 2014. सेकेंड मशीन को आप बेच रहे हो. सेल ऑफ सेकेंड मशीन ऑन 1st Jan 2014. चलो हाउ डू यू स्टार्ट? ऑलवेज विथ व्हाट? ओरिजिनल कॉस्ट. एज ऑन 1st January 2012 हर एक मशीन का कॉस्ट तो वही था 15,000. फिर लेस डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर on 31st December 2012 is 1,500. So you will get WDV at the start of the second year. WDV is on 1/1/2013. फिर आप सेकेंड ईयर का डेप्री चार्ज करोगे. डेप्रिसिएशन ऑन 31st December 2013. दिस इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. तो अगेन आपका वही आएगा. सो यू विल गेट WDV at the start of the third year, which is the last year. WDV on 1/1/2014. That is rupees 12,000. फिर मैं बस लिखने के लिए लिख रहा हूं. Current depreciation is 0. Why again it is 0? Because it is sold on the start of the year. So you'll again get 12,000. Less you will have net sales value. Again it is sold at the same price 12,500 minus nil. There are no expenses on sale. So इस बार अपने को 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया. And that profit is rupees 500. Now to be very careful. First entry, anybody now without looking into the previous working? First entry always will be करंट ईयर डेप्री. प्लीज रिमेंबर, पहले करंट ईयर का डेप्री मारने का, फिर डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करने का. सो करंट ईयर डेप्री नहीं है. टेल मी सेकेंड एंट्री विल बी फॉर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ रुपीज 15,000. व्हाट वुड यू राइट इन मशीनरी अकाउंट? बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. मशीनरी अकाउंट में आएगा बाय मशीनरी डिस्पोजल 15,000. डिस्पोजल अकाउंट में आएगा टू मशीनरी अकाउंट. डिस्पोजल अकाउंट डेट इज एवरीवेयर Jan 1. टू मशीनरी अकाउंट 15,000. ये हो गया नंबर 2. बोलो नंबर 3 में 3 फिगर को ऐड कौन सा करना है? फर्स्ट 1,500, सेकेंड 1,500 एंड करंट ईयर. ये करंट ईयर डेप्री बहुत लोग भूल जाते हैं. टू बी वेरी केयरफुल. ये तीनों का टोटल करोगे, दैट विल बी योर नंबर 3. बोलो ये तीनों का टोटल कितना है? आइला क्या बोल रहे हैं अपन?
1500 ने 0, 3000. What would you write in your provision account, everybody? To machinery disposal account. क्योंकि प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको आपको ट्रांसफर करना है. So there you will write to machinery disposal 3000. Therefore in disposal account you will write by provision for debris. In disposal account you will write by provision for debris and the amount is rupees 3000. ये हो गया आपका नंबर 3. What's number 4, everybody? WDV नहीं, WDV तो आ गया ना. कोई बता सकता है डिस्पोजल अकाउंट में WDV आ गया कि लिखना पड़ेगा? कैसे आया? 15 minus 3. 15 is on the debit side, 3 is on the credit side. The difference has to be this figure जो सर्कल कर रहा हूं, 12,000 WDV. चलो अभी बेचा कितने में? 12,500. बोलो बेचने का एंट्री कौन से अकाउंट में आएगा? डिस्पोजल. व्हाट वुड यू राइट? बाय बैंक अकाउंट. तो डिस्पोजल अकाउंट में लिखो बाय बैंक अकाउंट. डिस्पोजल अकाउंट में आएगा बाय बैंक अकाउंट 12,500. बस अभी डिस्पोजल अकाउंट में बताओ कौन सा साइड ज्यादा आएगा? Credit side. So to profit on sale of machinery is the last one, number 5. To profit on sale of machinery is number 5, 500. तो आपका disposal account tally हो जाएगा at rupees 15,500. बोलो what is the last thing remaining? Buy debris. Which account? Provision account में लिखो December 31 by depreciation account and that will be your last working. That will be your last working depreciation on 31st December 2014. Depreciation on 31st December 2014. चलो भी खुद से करो. पहला वो जो 6 मशीन था ना उसमें से 2 बेच दिया, 4 बच गया ना. 60,000 पे 10%, 6,000 वो हो गया और 28,000 का 10%, 2800 वो हो गया, 8,800. सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,800. प्लीज क्लोज योर मशीनरी अकाउंट. बाय बैलेंस कैरिड डाउन इज रुपीज एनीबडी 88,000. कैसे आया 88? पक्का मत. 60,000 विच इज 4 मशीन. 6 में से 2 बेच दिया तो 4 बच गया ना. 4 इंटू 15,000, 60,000 का ओरिजिनल कॉस्ट वो है और 28,000 वाला और एक है. 60 प्लस 28 दैट इज 88,000. यस ना एवरीबडी? एंड प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस 22,200. प्रोविजन अकाउंट में आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन दैट इज 22,200. Everybody recollect this now? Question number 3. Please read the problem carefully. ध्यान से पढ़ना. Question number 3. First question. How many accounts to be prepared? Same 3 account. Second question. These 3 account you will have to prepare for how many years? Only 1 year. Which 1 year? 2009. Okay, चलो अभी थोड़ा बेसिक कर लेते हैं. What is the percentage of depreciation? 20%. पर एनम नहीं दिया है तो क्या करने का? फिर भी पर एनम लेने का. Which is the method they are following? Diminishing balance method is nothing but your WDV method. What is the year ending, everybody? How did you know? Question के फर्स्ट लाइन में दिया है 3 years ended
31st December 2008. Okay, so year ending is 31st of December. चलो, so 3 अकाउंट रेडी कर लो. फर्स्ट इज मशीनरी अकाउंट. क्या लिखने का? ब्रैकेट में एट कॉस्ट. या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मशीनरी अकाउंट के ब्रैकेट में लिखो एट कॉस्ट is your account number 1. Provision for a depreciation account is your account number 2. Machinery disposal account is your account number 3. Half of page में आराम से हो जाएगा because you have to prepare this account only for 1 year and that year is 2009. लिख दो, तीनों अकाउंट में लिख दो 2009 on both the sides. In all the 3 account, you write 2009 on both the sides in your date column. चलो स्टार्ट करते हैं प्लीज. सो मशीनरी अकाउंट में कोई बता सकता है? 2009 is surely not first year. Do you agree? क्योंकि ऑलरेडी 2006, 2007 and 2008 का ये कौन सा अकाउंट दिया? ये मशीनरी अकाउंट दिया हुआ है 3 साल का. तो बताओ हाउ योर मशीनरी अकाउंट विल स्टार्ट विथ? टू बैंक आएगा, बैलेंस आएगा ऑब्वियसली. सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन January 1. कैन यू टेल मी हाउ मच इज द बैलेंस? 85,000. 2008 का जो क्लोजिंग बैलेंस है obviously that will be the opening balance for 2009 and that is 85,000. Next you go to provision account. provision account का opening balance दिया है कि अपने को कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना रहेगा. वैसे ओपनिंग बैलेंस आएगा कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड. लिख दो Jan 1 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. Jan 1 को आएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रोविजन अकाउंट में एंड दैट विल बी योर वर्किंग नंबर 1. वर्किंग नंबर 1 आएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट ऑन 1st Jan 2009. अब कैसे फाइंड करेंगे अपन ओपनिंग बैलेंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, बाय द वे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन अकाउंट? मतलब यू हैव टू कैलकुलेट ओनली 1 year डेप्री, ऑल ईयर्स टिल 1st January 2009. तो पहले तो आपको प्रॉब्लम में चेक करना पड़ेगा कि ये लोग का मशीनरी है कितना. 3 मशीनरी है. फर्स्ट मशीनरी कब खरीदा है? 1st Jan 2006. सेकेंड मशीनरी 1st July 2007. थर्ड मशीनरी 1st July 2008. ओके, तो हम क्या करेंगे? एक टेबल बनाते हैं. चलो, सो व्हाट वी विल डू इज, दिस इज मशीन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये टोटल और ये पर्टिकुलर्स. समझते 10 लाइन का टेबल बना दो वर्किंग में. Remember, in this problem, it is not original cost method. It is diminishing balance method. मतलब every year your depreciation will change. चलिए start करते हैं everybody. Original cost on 1st Jan 2006. Machine number 1 50,000. Total column में भी 50,000. हमने फर्स्ट मशीनरी खरीदा. कब खरीदा? 1st Jan 2006. 50,000 में खरीदा.
2 और 3 में कुछ नहीं आएगा because 2 is purchased in second year, 3 is purchased in third year. फिर आएगा फर्स्ट ईयर का डेप्री, लेस डेप्रीसिएशन ऑन 31st December 2006. कोई बता सकता है हमने कितना डेप्री चार्ज किया रहेगा? 10,000. कितने महीने का? पूरा 12 महीने का आएगा. 20% है. इट इज 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. तो 10,000 आएगा मशीन नंबर 1 में. टोटल कॉलम में भी आएगा 10,000. So you will get WDV. Now you will start your second year. So WDV on 1/1/2007. एक ही मशीन है जिसका WDV आएगा 40,000. 2 और 3 तो है नहीं, तो टोटल भी आएगा 40,000. कोई बता सकते हो ये टेबल में मैं नेक्स्ट क्या लिखूं? परचेस कभी किया है? 1st July. सो ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1st July 2007. कितने में खरीदा? 20,000. विच कॉलम शुड आई राइट? ये मशीन नंबर 2 में आएगा 20,000. लास्ट कॉलम में भी आएगा 20,000. उसके बाद आएगा लेस depreciation on 31st December 2007. 31st December 2007. हाँ, अभी मशीन वाइज जाना है आपको. बोलो फर्स्ट मशीन पे फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12 महीना. बट ऑन व्हाट फिगर? 40. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है. 40 का 20% कितना? 8,000 हो जाएगा. और मशीन नंबर 2 पे फॉर हाउ मेनी मंथ्स? ओनली 6 मंथ्स. बोलो 2,000 आएगा. तो लास्ट कॉलम में आ जाएगा 10,000. तो आप अभी थर्ड ईयर में आ गए. WDV on 1st Jan 2008. 32,000 machine 1, 18,000 machine 2. मशीन 3 तो है नहीं, तो लास्ट कॉलम में कितना आएगा? 50,000. बोलो अभी सोच समझ के बताना. व्हाट शुड आई राइट नेक्स्ट? ओरिजिनल कॉस्ट. और एक मशीन खरीदा है. ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1st July 2008. थर्ड मशीन आपने खरीदा. कितने में खरीदा? 15,000. विच कॉलम शुड आई राइट? थर्ड कॉलम. थर्ड कॉलम में आएगा 15,000. लास्ट कॉलम में भी आएगा 15,000. लेस व्हाट एवरीबॉडी? डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर का ऑन 31st December 2008. Anybody on machine 1? It will be on which amount? 32,000. बोलो कितना आएगा? 6,400. मशीन 2 पे ऑन विच अमाउंट? 18,000. 18,000 का कितना है? 20% ना? कितना? 3,600. थर्ड मशीन अभी अभी खरीदा है. सो फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 महीना. अमाउंट बोलो. 1,500. तीनों का टोटल बोलो. 11,500 in the last column. So you will get now WDV on 1/1/2009, which is our current year.
बोलो फर्स्ट मशीन एनीबडी 25,600 आया. सेकेंड मशीन 14,400. थर्ड मशीन 13,500. एंड लास्ट कॉलम में 35 53,500. Now comes the key part. Therefore, accumulated debris, because वही तो हमें चाहिए, accumulated debris. कोई बता सकता है फर्स्ट मशीन के ऊपर आज तक आपने कितना डेप्री चार्ज किया है? Which three figures have you added? 10,000, 8,000, any other way? 50,000 minus 25,600. ओरिजिनल कॉस्ट माइनस WDV करोगे तो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्री कितना मिलेगा? 24,400. ये हो गया फर्स्ट मशीन का. सेकेंड मशीन लाइक वाइज एवरीबडी 5,600. थर्ड मशीन एवरीबडी 1,500. तीनों मशीन मिला के 31,500. कैसे आएगा ये 31,500 अगर डायरेक्टली चाहिए तो? व्हाट इज 85? तीनों का ओरिजिनल कॉस्ट 50 प्लस 20 प्लस 15 85 हो गया. और 85 का WDV कितना है? 53,500. 85 minus 53,500, you will get the accumulated debris from the date of purchase till 1st January 2009 as 31,500. तो उधर प्रोविजन अकाउंट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 31,500. इज दिस क्लियर एवरीबडी? इसका एक शॉर्टकट बताता हूं, नहीं समझ में आए तो बुरा सपना समझ के भूल जाना. मशीन नंबर 1, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट? 50,000. कोई बता सकता है फर्स्ट ईयर में व्हाट इज द परसेंटेज डेप्री आई विल चार्ज? वाई फुल 20%? क्योंकि 1 जनवरी को खरीदा है तो WDV कितना बचेगा? 80% बचेगा कि नहीं से? सो 0.80. फिर उसका 80% बचेगा बिकॉज WDV मेथड है तो इंटू 0.80. फिर वापस उसका 80% बचेगा तो 0.80. तो डायरेक्टली कैलकुलेटर पे 50,000 इंटू 0.80 इंटू 0.80 इंटू 0.80 करो सब लोग. कुछ लोग बैठे हैं जैसे सत्यनारायण की कथा चल रही है और ये आनंद ले रहे हैं. साला खुद का कैलकुलेटर करो ना कैलकुलेट. 25 ये फिगर किधर है? वो ऊपर टेबल में दिख रहा है ना WDV 25. अब आ गया मशीन नंबर 2. ये 20,000 में खरीदा था. कौन से साल में खरीदा था? सेकेंड ईयर में. हाँ, सेकेंड ईयर में 1 जुलाई को खरीदा था तो 0.9 आएगा क्योंकि 10% ही डेप्री आएगा 6 महीने का. तो बैलेंस बचेगा 90%. और फिर थर्ड ईयर में 0.8. 2 ही साल है ना, फर्स्ट ईयर तो था ही नहीं. सो बताइए 14,400. लाइकवाइज मशीन नंबर 3 15,000. फर्स्ट ईयर तो था ही नहीं, सेकेंड ईयर भी था ही नहीं. थर्ड ईयर में 6 महीने का मतलब 10% तो बचेगा 90%. 13,500. ये तीनों को आप टोटल करो, यू आर बाउंड टू गेट सेम 53,500. टोटल आपका 85,000 का कॉस्ट था, उसमें से WDV माइनस करो 53,500. यू विल गेट प्रोविजन फॉर डेप्री एस 31,500. एग्जाम में टाइम कम रहेगा तो ये वर्किंग करके आ जाना. बस ये वर्किंग में थोड़ा रिस्क है, उसको समझ में आया तो फुल मार्क्स मिल जाएगा
और उसको समझ में नहीं आया तो लगेगा कुछ तो भी जुगाड़ किया है और आगे वाले में से कॉपी किया है। अकॉर्डिंग टू मी इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट है नहीं, बट ऐसा सोल्यूशन किधर स्टडी मटेरियल में आज तक मैंने देखा नहीं है। बट दिस इज फार इजियर एंड फास्टर मेथड। ये मेथड तभी कर सकते हो इफ इट इज नो, क्या बकवास करते हैं लोग यार। ये मेथड तभी कर सकते हो व्हेन इट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। यही अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता ना, आई वुड हैव डन 50,000 इंटू 0.40, क्योंकि 20%, 20%, 20%, 3 साल का 60% निकाल देता, बचेगा 40%। 50,000 इंटू 0.40। सेकेंड वाले केस में 10% और 20%, 30% निकाल देता तो 0.70, एंड थर्ड में सेम आएगा। इफ इट इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इट इज इवन सिंपलर। आई होप यू फॉलोड। या हाँ, नहीं समझा रहेगा तो मैं तो मजाक करता रहता हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है, मेरी सब बातें दिल पे नहीं लेने का। आई डोंट थिंक इसमें नहीं समझने जैसा कुछ है। जस्ट यू टू बी केयरफुल हियर कि जब भी आपने मिडल ऑफ द ईयर में समझो 1 अक्टूबर को खरीदा रहता तो ये सेकेंड मशीन 1 अक्टूबर को खरीदा रहता तो 3 महीने का कितना टका? 5% ना। 12 महीने का 20%, 3 महीने ना कितना, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5% आएगा। समझ रहे हो ना? या सो स्लाइटली केयरफुल रहने का, अदरवाइज वेरी इफेक्टिव एंड वेरी फास्ट मेथड। या चलो, सो ये हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। अभी तक हमारा आंसर स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ, ये हमने क्वेश्चन को रेडी कर लिया, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है, प्रिपेयर ऑल दिस अकाउंट्स फॉर द ईयर 2009। तो ये हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। अब आंसर करते हैं। चलो बोलो, पढ़ के बताइए 2009 में क्या हुआ है। फर्स्ट डेट बताओ। 1 अक्टूबर। देख, 2 ही लाइन दिया हुआ है। आई एम रीडिंग दैट। ऑन 1 अक्टूबर 2009 machine number 2 was damaged, had to be replaced by new machine costing 25,000। ये had to be replaced का मतलब क्या हुआ? सिंपल भाषा में परचेस किया। डू यू एग्री? ऐसा नहीं कि जिसको बेचा उसी से परचेस किया, ऐसा नहीं है कुछ, ऐसा पिटूस पिटूस नहीं करने का। या हैड टू बी रिप्लेस मतलब इट्स अ वे ऑफ टेलिंग यू कि एक मशीनरी मेरा डैमेज हो गया, मशीनरी के बगैर मेरा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, उसको रिप्लेस किया। बोले तो नया मशीनरी खरीदा फॉर 25,000। अभी जो फर्स्ट मशीन डैमेज हो गया, लकीली द मशीन वॉज insured, an insurance claim of rupees 12,400 was admitted by the insurer। चलो ठीक है। So can you tell me, मशीनरी डैमेज हो गया और उसका अपने को इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हो गया, इज एज गुड एज कैन आई से सेल। सेल करके अपने को बायर पैसा देता है, डैमेज हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी अपने को पैसा देता है, लेकिन वर्किंग नोट तो तुम्हारा सेल के जैसा ही आएगा। अब क्या करूं, मशीन नंबर 2 का ओरिजिनल कॉस्ट लेके ऐसा लंबा स्टोरी स्टार्ट करूं? क्यों? ऑलरेडी किया हुआ है ना यार, अब दोबारा करके क्या करेंगे? ओके, सो राइट डाउन एवरीबॉडी, आपका वर्किंग नोट में आएगा डैमेज ऑफ machine number 2 on 1st October 2009। अब मैं जनरली है ना प्रोविजन मेथड में फिर भी ओरिजिनल कॉस्ट से स्टार्ट करता हूं, सो दैट यू नो दैट 1 2 3 4 5 5 एंट्रीज आपको पास करना है। यू वांट टू अवॉइड, यू कैन अवॉइड इट। हाँ, पूरा नहीं लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट कितना था उसका ऑन 1 जुलाई 2007? कैन यू टेल मी? 20,000 था। फिर लिखने का लेस प्रोविजन, नहीं डायरेक्ट प्रोविजन फॉर डेप्री, हमारा कैलकुलेट किया हुआ है
बोलो मशीन 2 में बता सकते हो लास्ट 2 साल में कितना डेप्री चार्ज किया था? 5600 एग्जैक्टली 5600 अपन ने ईयर 2 और ईयर 3 मिला के 5600 चार्ज किया था, तो मुझे डायरेक्ट WDV मिलेगा एट द स्टार्ट ऑफ करंट ईयर which is WDV on 1/1/2009. How much was the WDV, everybody? Is 14,400 less. Anybody? Current year's depreciation. अब करंट ईयर का डेप्री आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. द रेट ऑफ डेप्री इज 20%. Everybody, 20% of 20,000 or no? Why? WDV method है तो 20% of what? 14,000 कि 14,400. And for how many months? 9 months तो हमने यूज किया था. How much is that, please? 2160. You will get WDV on the date of damage. The date of damage is 1st October 2009. उसका WDV आएगा 12,240 आएगा less इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड. इधर भी सेल्स वैल्यू मत लिखना पोपट की तरह. लेस इंश्योरेंस क्लेम. हाउ मच इज इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड? इज 12,400. अच्छा हुआ डैमेज हो गया, फायदा हो गया. प्रॉफिट ऑन सेल profit बस. I agree with you. So profit is rupees 160. I have only one question. Why will insurance company stop writing? Why will insurance company admit the more claim resulting into profit for you? Exactly. क्योंकि जो depreciation आपने चार्ज किया है is called as. तुम लोग महाराष्ट्र बोर्ड में हो क्या? हाँ तो थोड़ी भाषा अच्छी यूज करते ना प्लीज, बोर होता है अभी. महाराष्ट्र बोर्ड हो गया तुम्हारा. इट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग एस्टीमेट. देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज अ अकाउंटिंग एस्टीमेट. आपने जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया है 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यह एक्चुअल डिप्रिसिएशन नहीं है. एक्चुअल डिप्रिसिएशन के लिए तो आपको एवरी ईयर मार्केट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, एंड देन यू विल कंपेयर ओरिजिनल कॉस्ट विद द मार्केट वैल्यू एंड द डिफरेंस विल बी एक्चुअल डिप्रिसिएशन. बट डिप्रिसिएशन इज नेवर रिकॉर्डेड on actual basis in your books of account. It is called accounting estimate. आपने ज्यादा depreciation charge कर दिया तो ये जो लिखा है ना profit is actually reversal of excess depreciation already charged. सचमुच कोई प्रॉफिट नहीं होता है. सचमुच कभी भी इंश्योरेंस में प्रॉफिट नहीं होता है. अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे बता सकते हो ये 12,400 का प्राइस कैसे डिसाइड किया रहेगा? करंट मार्केट वैल्यू. दे वुड हैव एस्टिमेटेड व्हाट इज द करंट मार्केट वैल्यू एंड मे बी ऑन दैट बेसिस दे वुड हैव डिसाइडेड द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम. ओके, चलो स्टार्ट करते एवरीबडी. 5 एंट्रीज, यू नो इट वेरी वेल. व्हाट इज एंट्री नंबर 1? करंट ईयर डेप्रिएरा. बोलो करंट ईयर डेप्री आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. मशीनरी अकाउंट में जाओ, राइट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. नहीं, कोई नहीं फंसा? वेरी गुड. सो प्रोविजन अकाउंट में जाओ एंड देयर यू विल बी राइटिंग बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. डेट इज October 1. बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2160. ये हो गया एंट्री नंबर 1. Everybody, entry number 2. Which figure? Amount बोलो. 20,000 original cost.
Go to your machinery account. Bolo, what would you write in machinery account? Buy machinery disposal account. Everywhere the date is October 1. Buy machinery disposal account. The original cost is 20,000. Disposal account में जाओ. There will be two machinery account. 20,000. Disposal account में आएगा. Two machinery account. 20,000. Anybody? Third entry का amount will be addition of 5,600 and 2160. What is 5,600 everybody? Is 2 years depri. Year number 2 and year number 3. और ये 2160 करंट ईयर का है. ये दोनों को ऐड करने का भूलने का नहीं. 7760. Okay. Bolo, what you will write this? 7760 in provision account to machinery disposal account. In provision account to machinery disposal account is 7760, and therefore in disposal account it is by provision for a debris. In disposal account it is by provision for a debris 7760. ये हो गया आपका number 3. Number 4 is not selling price, it is insurance claim. फर्क क्या पड़ता है? पैसा कौन दे रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. पैसा तो मिला ना, बाय बैंक अकाउंट. पैसा मिला, पढ़ो तो जरा ध्यान से. Insurance claim of 12,500 or 400 was settled. दिया रहेगा ना settled, तो मतलब पैसा मिला. सुबह एक्सीडेंट हुआ, दोपहर को क्लेम एडमिट हो गया, लंच के बाद और डिनर से पहले पैसा मिल गया. ऐसा खाली किताबों में ही होता है. रियल लाइफ में तो कम से कम 1-2 महीना लगता है क्लेम मिलने के लिए. तो ये क्लेम मिला नहीं है. Admit मतलब agreed to pay. Can you tell me what would you write in your disposal account? By insurance claim account. Insurance claim account को debit करना होता है because it is our asset. अब what I have given you is the textbook solution. आगे क्या होगा बताता हूं आपको. ये जो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट है, समझो अगर मैं बनाता हूं थोड़ी देर के लिए, मान लो आपको बोला इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट बनाओ, तो कैसे बनाओगे? व्हाट वुड यू राइट इन इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट? टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. ये तुम्हारा क्लेम अकाउंट है, इसमें आएगा टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 12,400. फिर मैं एक एजम्पशन लिखूंगा कि 6 महीने में नहीं, रादर 3 महीने में क्लेम का पैसा मिल चुका है. बिकॉज 1 अक्टूबर का डैमेज है, ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर. आई वुड बी वेरी कीन टू राइट द एजम्पशन कि 31 दिसंबर से पहले क्लेम का पैसा मिल चुका है. देन इट इज बाय बैंक अकाउंट 12,400. और अगर आप एज्यूम करते हो कि क्लेम का पैसा नहीं मिला है, तो मतलब ये इंश्योरेंस क्लेम आपका एसेट साइड पे जाएगा. बिकॉज मनी इज रिसीवेबल इन फ्यूचर. देन यू विल राइट बाय बैलेंस कैरिड डाउन, एंड दिस डेबिट बैलेंस विल बी शोन एज अमाउंट रिसीवेबल on balance sheet asset side under the head current assets. I hope it is clear. Yeah, okay, go back to your disposal account. बोलो डिस्पोजल अकाउंट में क्या आएगा? नहीं, बाय इंश्योरेंस क्लेम तो आ गया ना. कितना आया बाय इंश्योरेंस क्लेम? हाउ मच एवरीबडी? 12,400 आया ना. अभी प्रॉफिट है 160. हाँ, अभी जनरली है ना, जब डिस्पोजल अकाउंट होता है ना, यू मे डायरेक्टली ट्रांसफर इट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यू नो व्हाई? बिकॉज डिस्पोजल अकाउंट है ना आपका एंड ऑफ द ईयर तक ओपन रहेगा.
फिर तुम जब उसको एंड ऑफ द ईयर में क्लोज करोगे तो जो भी डिफरेंस आएगा, you may not transfer it in loss on sale or profit, you can directly transfer that in profit and loss. But if you are directly transferring that in profit and loss, then the date should not be 1st October, the date should be 31st December. So I am going by that. So write on the debit side December 31 to profit and loss account. किसी को अगर अक्टूबर 1 को ही एंट्री पास करना है तो गलत तो नहीं है, बट क्या पास करोगे मालूम है? टू व्हाट? प्रॉफिट ऑन इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट अकाउंट, ऐसा कुछ तो भी अकाउंट बनाना पड़ेगा. प्रॉफिट ऑन सेल मत लिख देना, इट इज प्रॉफिट ऑन इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट. And if you want to avoid that, I suggest you avoid that. Disposal account में क्या करने का? End of the year को directly profit and loss में transfer कर देने का, तो आपका disposal account again tally हो जाएगा. This was your 5th and the last entry. Okay, check करो problem में. और कुछ है क्या? परचेज सेल, परचेज है ना? कभी परचेज किया है? सेम डेट. सो मशीनरी अकाउंट में लिखो टू बैंक अकाउंट, इट इज October 1. मशीनरी अकाउंट में आएगा टू बैंक अकाउंट. कितना आएगा अमाउंट एवरीबडी? 25,000. I think we are done with. So go in the provision account. The last entry will be by depri. प्रोविजन अकाउंट में आपको ईयर एंड का डेप्री चार्ज करना पड़ेगा, तो प्रोविजन अकाउंट में आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. दैट विल बी योर लास्ट वर्किंग डेप्रिसिएशन ऑन 31st December 2009. दैट विल बी योर लास्ट वर्किंग डेप्रिसिएशन ऑन 31st December 2009. बोलो अभी कौन से मशीन पे डेप्री नहीं आएगा? सेकेंड पे नहीं आएगा. फर्स्ट का कैसे कैलकुलेट करोगे? ऑन व्हाट फिगर? 25,600 ना, बिकॉज WDV मेथड है, और फर्स्ट का WDV तो है हमारे पास. फर्स्ट का भी है, थर्ड का भी है. सो लिखो मशीन 1 20% ऑफ 20/100 इंटू 25,600 इंटू 12/12. ये मशीन 1 का हो जाएगा. मशीन 2 तो बेच दिया. मशीन 3 में WDV was 13,500. So 20% of 13,500. और मशीन 4 आपने अभी अभी खरीदा है, उस पे कितने महीने का आएगा? 3 महीने का. So please calculate and tell me how much is the total depri? 9070. So by depreciation account 9070. चलो क्लोज करो प्लीज. पहले मशीनरी अकाउंट को क्लोज करो. बाय बैलेंस कैरिड डाउन. मशीनरी अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा है, सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन. हाउ मच इज द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट? 90,000 आया. देख 50,000 फर्स्ट का ओरिजिनल कॉस्ट है, 15,000 थर्ड का है, सेकेंड तो बेच दिया, 65 हो गया, और 25 का नया खरीदा, तो 90,000 ही आना चाहिए. लाइकवाइज प्रोविजन अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड हमेशा ज्यादा रहेगा, तो प्रोविजन अकाउंट में आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन. प्रोविजन अकाउंट में आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन. एनीबडी? हाउ मच? 34,970 is the balance of provision account. Chapter number 6, inventories. Question number 1. Please read question number 1. कर लो जो एडजस्टमेंट करना है करो, फिर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो.
माइंड के अंदर डिप्रिसिएशन का फाइल को क्लोज करो, इन्वेंटरी का फाइल को ओपन करो। आई नो जंग लग गया रहेगा, लेकिन थोड़ा ओपन करो। याद है ना इन्वेंटरीज? इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, एवरीबडी मस्ट बी रिमेंबरिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हाट? AS2, valuation of inventories, cost price और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर लेते हो ना, उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं। देयर इज AS2, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, विच टॉक्स अबाउट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। 2 महीने में आ जाएगा, ये रहा 2 महीने में। प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 1। क्या हो गया? कम अगेन। 5 एस बता भी, मैं तो बोलते ही रहता, मेरे अंदर से तो एस निकलते रहते भी। कौन सा बताए देखते हैं ना कहीं कोई ना कोई चैप्टर में आ जाएगा। कौन सा 5 बताए बोल तो? AS2 इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। कैश फ्लो स्टेटमेंट was AS3. AS26 is accounting for intangible asset, goodwill. AS10, AS13 इन्वेस्टमेंट सॉलिड एकदम, आधा रेडी है तो इंटर के लिए। और AS10 विच इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, विच इज टॉकिंग अबाउट योर tangible fixed assets. Question number 1. चलो पढ़ के बताओ। How to solve question number 1. I am reading it once. चलो ध्यान दो प्लीज। This is a different variety little. आई डोंट थिंक हमने ऐसा वाला सम किया रहेगा, कॉन्सेप्ट किया रहेगा, बट अ गुड प्रॉब्लम। आई एम रीडिंग इट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। स्मॉल बट अ वेरी गुड प्रॉब्लम। अ फर्म हैज 2 प्रोडक्ट्स A and B. It analyzes its cost for the product as follows. कोई तो भी फर्म है, अभी मेरे को बताओ ये ट्रेडिंग फर्म है, ट्रेडिंग फर्म के मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है? कैसे समझा? प्रोडक्शन देखो, मटेरियल्स दिया हुआ है, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस मतलब दिस इज द एग्जाम्पल रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो रॉ मटेरियल खरीदता है और फिर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है। वो 2 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B। अब दोनों प्रोडक्ट में इसका कॉस्ट कितना हुआ है आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है। बोलो, प्रोडक्ट A में मटेरियल कॉस्ट इज 1,20,000, प्रोडक्ट B में द मटेरियल कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट इज 1,40,000। लेबर इज नथिंग बट योर वेजेस। जो फैक्ट्री में वर्कर वगैरह काम करते हैं उसको जो आप पेमेंट देते हो, वेजेस। दिस वेजेस इज डिफरेंट फ्रॉम द वेजेस that you had in 11th and 12th standard. क्योंकि 11th और 12th स्टैंडर्ड में आपने जो फाइनल अकाउंट किया था ना, दैट वाज फाइनल अकाउंट ऑफ अ ट्रेडर, लेकिन उसमें भी वेजिस तो आता ही था। तो वो जो वेजिस है ना, दैट इज नॉट फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, दैट वाज बेसिकली फॉर छोटे मोटे चेंजेस, मतलब मॉडिफिकेशन। क्या आपने फिनिश गुड्स खरीदा, प्लेन टी शर्ट खरीदा और फिर उसके ऊपर कुछ एम्ब्रॉयडरी वर्क करवा लिया, कुछ प्रिंटिंग वर्क करवा लिया,
विराट कोहली बहुत पसंद है तो विराट कोहली का स्टिकर लगा दिया, अनुष्का भी पसंद है, दोनों का जोड़ी में स्टिकर लगा दिया. इट ऑल डिपेंड्स. सो वहां पे जो वेजेस था ना आपको 11th एंड 12th का, वॉस फॉर डूइंग सम माइनर मॉडिफिकेशन. यहाँ पे जो है ये बकायदा फैक्ट्री में जो वर्कर लोग काम करते हैं, बिकॉज एक मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, ही विल परचेज द raw material, then he will convert the raw material in work in progress, then work in progress will eventually get converted into finished goods. आपको अगर याद रहेगा कि हमने फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन किया था, उसमें हम एक अकाउंट बनाते थे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. सो उसमें आप फैक्ट्री के सारे खर्चे लिखते थे. उसमें अगर आपको याद रहेगा 3 टाइप का स्टॉक था, रॉ मटेरियल स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक एंड फिनिश्ड गुड्स स्टॉक. सो दिस प्रॉब्लम इज बेसिकली relating to a manufacturer. अब मैन्युफैक्चरर क्या क्या खर्चा किया है उसने, 2 प्रोडक्ट बनाया उसने, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी. तो क्या क्या खर्चा किया, एक रॉ मटेरियल का खर्चा किया, दूसरा लेबर मतलब वेजेस का खर्चा किया. अब तीसरा दिया प्रोडक्शन एक्सपेंसेस. यू नो व्हाट इज दिस प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, मतलब ऑल योर फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस जिसको आप लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते थे. हेलो, क्या क्या रहेगा, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, पावर एंड फ्यूल, सुपरवाइजर्स सैलरी, depreciation on machinery, because for a manufacturer depreciation on machinery is a production related cost. तो उसका पीएल अकाउंट में नहीं लिखते थे, इफ यू रिकलेक्ट. पता नहीं ऐसे चेहरे से ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. डेप्रिसिएशन अगर आपको याद रहेगा, हमने क्या किया था, डेप्रिसिएशन का 2 टुकड़ा कर दिया था. If it is a depreciation on machinery or any other factory asset, then you write that in manufacturing account debit side. If it is depreciation on कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सारे एसेट्स जो ऑफिस वगैरह में यूज होते हैं, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखते थे इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन. तो ये आपके प्रोडक्शन के रिलेटेड जो भी खर्चे वो दिया है. नेक्स्ट आपको दिया है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. दिस इज बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस मतलब वो सारे खर्चे जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हो. सैलरी ऑफ द ऑफिस स्टाफ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, postage and telegram, sundry expenses, depreciation on furniture, repairs and maintenance, so many. What you write in profit and loss account debit side, which is either for running the office or it is for overall एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, उसको ये लोग बुलाते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. और एक था आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जिसका एग्जाम्पल दिया है एडवर्टीजमेंट. ये जो थे ना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये सब हमने एक चैप्टर में किया था, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, चलो तो मुझे बताइए सब एक्सपेंस मिला के प्रोडक्ट ए का टोटल खर्चा कितना हुआ है? 3,50,000. प्रोडक्ट बी का टोटल खर्चा है 3,90,000. अब इन्होंने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया वो दिया हुआ है. प्रोडक्शन वाज
20,000 units of product A and 30,000 units of product B, मतलब पूरे साल में जो भी पीरियड है पूरे साल में 20,000 यूनिट ए का बनाया, 30,000 यूनिट बी का बनाया. द सेलिंग प्राइस वॉज 20 rupees per unit of product A, but the price of product B was only 10 rupees. Agents in both the cases received commission at the rate of 5% of the selling price. The closing stock was 2,000 units and 3,000 units of product A and product B respectively. कोई मुझे बता सकता है प्रोडक्ट ए का कितना यूनिट आपने बेच दिया रहेगा? 18,000. कैसे आया? 20 माइनस 2 क्यों किया मालूम है? बिकॉज ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है. सो प्रोडक्शन किया 20,000, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक है 2,000, 18,000 यूनिट बेच दिया. वैसे ही प्रोडक्ट बी 30,000 यूनिट मैन्युफैक्चर किया, 3,000 क्लोजिंग स्टॉक है, 27,000 बेच दिया. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इसकी स्टोरी तो पढ़ ली अपन ने भाई, तो पूछना क्या चाह रहा है? ही इज आस्किंग यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू दैट शुड बी पुट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, विच मीन्स ही इज आस्किंग यू क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या अमाउंट पे वैल्यू करोगे. और क्लोजिंग स्टॉक का प्रिंसिपल इज कॉस्ट प्राइस और नेट realizable value. What do you mean by net realizable value? Is net selling price whichever is lower as per accounting standard 2. चलो anybody can please tell me. चलो कैलकुलेटर यूज करो फटाफट, है क्या इसमें यार? कैलकुलेट करो, बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक का तुम क्या वैल्यू पे करोगे. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए, एनीबडी? वेरी सिंपल. चलो बताओ कैसे आया 35,000. कॉस्ट कितना है तुम्हारा? कॉस्ट 3,50,000 आया. हाँ, फिर डिवाइड बाय व्हाट? 20,000. देखिए क्या बोल रहा है एवरीबडी, कॉन्सेंट्रेट करो. ये क्या बोल रहा है मैं पहले स्क्रीन पे लिख देता हूं. ये बोल रहा है प्रोडक्ट ए का टोटल कॉस्ट कितना है? 3,50,000. प्रोडक्ट बी का टोटल कॉस्ट कितना है? 3,90,000. इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से. आपने 20,000 यूनिट मैन्युफैक्चर किया, इधर 30,000 यूनिट मैन्युफैक्चर किया, तो आपको एक यूनिट का कॉस्ट मिल जाएगा. 3,50,000 डिवाइड बाई 20,000. कैन यू प्लीज गिव मी द फिगर? 17.50. ये कॉस्ट आ गया. लाइकवाइज प्रोडक्ट बी का कॉस्ट कितना आया? 13 रुपीज. तो क्या जरूरी है कि आप क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस पे ही लोगे? नहीं, आपको कॉस्ट प्राइस को किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा? देख बाप, मेरा बात समझो. अगर तुम 11th-12th में होते तो मैं बोलता मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. तुमने बहुत बार किया रहेगा. डू यू एग्री? लेकिन अभी तुम थोड़े बड़े हो गए. सो यू हैव टू यूज द लैंग्वेज विच इज देयर इन AS2 एंड दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू. सो व्हाट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू? मतलब अपना मार्केट प्राइस ही है, कुछ ऐसे अलग नहीं है. लेकिन लिखने के लिए इट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट. मतलब एक यूनिट का नेट मार्केट प्राइस कितना है? बोलो. 20 रुपये में से वो कमीशन देना पड़ेगा ना भाई. 5% कमीशन है ना दोनों केस में. 19 रुपीज आएगा. डू यू एग्री? क्योंकि 20 रुपए का सेलिंग प्राइस है, उसके ऊपर 5%, मतलब 20 रुपए का 5% लेने का, तो ₹1 19 आया. हाँ, और लाइकवाइज सेकेंड प्रोडक्ट में 9.50 आएगा. बिकॉज कितना आएगा? 10 माइनस 0.5. ओके, तो क्या लेने का? कॉस्ट प्राइस लेने का कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू? विच एवर इज लोअर. विच इज लोअर इन द फर्स्ट केस? 17.5. विच इज लोअर इन द सेकेंड केस? 9.5. हाँ बोलो, अभी इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट ना.
तो क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स कितना है? 2000 इन ए और 3000 इन बी, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल जाएगा 35,000 आया। कैसे आया? 2000 इंटू 17.5 एंड 3000 इंटू 9.5, 28,500। Everybody followed? Anybody any query? Pakka? Yes. I can convince anything in this world, so this is wrong obviously. This is all utter nonsense. Exactly. एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडवर्टीजमेंट थोड़ी फैक्ट्री का कॉस्ट है भाई। आई नो बाबू, मैं तो ऐसे ही मजा आता है ना। मतलब आई वॉज टेस्टिंग माई कन्विंसिंग एबिलिटी, समझ रहे हैं ना? बिकॉज इफ आई वॉज अ लॉयर आई कैन विन द केस ऑन बोथ द साइड्स। जिसकी भी साइड से केस लड़ता आई वुड हैव वन इट। दैट इज एबिलिटी। नहीं, मैं कब से देख रहा है कोई मेरे को रोक नहीं रहा है, मैं बकवास किए जा रहा हूं। कुछ लोग आंखों से मुझे बोल रहे हैं। देख लास्ट बेंच पे दोनों जन मेरे को घूर रहे थे, लेकिन मुंह से नहीं बोलेंगे। सर चाय पी लो, सर कटिंग पी लो, आपका कटिंग का टाइम हो गया सर, प्लीज पी लो। कोई नहीं बोल रहे। That's okay. What was the only blunder? बाकी कैलकुलेशन का मेथड करेक्ट है। अरे भाई, आपको क्लोजिंग स्टॉक के लिए जो कॉस्ट चाहिए ना, कॉस्ट ये नहीं, व्हाट इज दैट कॉस्ट यू नो, जो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मिलता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अगर आपको याद रहेगा, मतलब इन शॉर्ट इसमें पीएल अकाउंट का कोई खर्चा नहीं आएगा, खाली फैक्ट्री का खर्चा आएगा। आई होप एवरीबडी फॉलोड। सो ये 3.5 लाख का फिगर गलत है और 3,90,000 का फिगर भी गलत है, क्योंकि उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी आ गया, उसके अंदर एडवर्टीजमेंट भी आ गया। चलो, सो राइट डाउन एवरीबडी। समझा कि नहीं समझा? अभी भी पक्का ना? राइट डाउन। स्टेटमेंट शोइंग, एक्सक्यूज मी, चलो थोड़ा प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करो। ये सब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम नहीं है। देख, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम का फॉर्मेट भी स्टैंडर्ड होता है, ऐसे वाले प्रॉब्लम में फॉर्मेट हमें क्रिएट करना पड़ता है। सो ऑब्जर्व इन दिस प्रॉब्लम द प्रेजेंटेशन पार्ट। राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग valuation of closing stock, statement showing valuation of closing stock। चलो, किसी को फेंकना है ये स्टेटमेंट का कॉलम क्या आएगा? एनीबडी वुड लाइक टू ट्राई? ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। particulars is always a correct column, but that is column number 2. My first column में 2 ही पॉसिबिलिटी है, फेंकना नहीं। या तो डेट हो सकता है या तो सीरियल नंबर। डेट आएगा? नहीं आएगा। मतलब पहला 2 कॉलम में तो कोई जोल नहीं है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, फिर मैं एक छोटा सा कॉलम बनाएगा विच इज कैलकुलेशन, उसके बाद आएगा प्रोडक्ट्स, उसमें आएगा ए और बी। तो 5 कॉलम वाला एक टेबल बना डालो। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स थोड़ा बड़ा होना चाहिए, कैलकुलेशन छोटा चलेगा। कैलकुलेशन के बाद 2 प्रोडक्ट है, दोनों का कॉलम से सेपरेट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एवरीबॉडी। सीरियल नंबर 1, राइट डाउन प्रोडक्शन कॉस्ट। First one is production cost. You can also call it as a cost of
गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये वर्ड सुना हुआ लग रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस आता था ये वही है, एग्जैक्टली द सेम। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट, बोलो प्रोडक्शन कॉस्ट में फर्स्ट कौन सा खर्चा आएगा? मटेरियल्स। राइट डाउन एवरीबडी, थोड़ा स्पीड करो अभी। सो मटेरियल्स आएगा 1,20,000 the first one, 1,40,000 the second one. Next is labor. Labor is nothing but wages, which is 80,000 and 1 lakh. थर्ड आएगा आपका फैक्ट्री का सब खर्चा जो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखते थे, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, विच इज 70,000। बस इसका टोटल करके इसको क्लोज कर दो। दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज अ प्रोडक्शन कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। हाउ मच इज दैट फॉर द फर्स्ट प्रोडक्ट एवरीबडी? 2,70,000, 3,10,000। ये हो गया सीरियल नंबर 1। देन नंबर 2, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। आपने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया ये आपको क्लियरली दिया हुआ है। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर 20,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए and 30,000 units of product B. थर्ड में फाइंड करेगा therefore production cost per unit। एक यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है कैलकुलेशन में आएगा सीरियल नंबर 1, मतलब उसको ब्रैकेट में लिखने का, डिवाइड बाय serial number 2. How do you find out cost per unit? Is very simple. 2,70,000 divided by 20,000 is how much everybody? 13.50 and 10.333। ये हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। नेक्स्ट आएगा एवरीबडी नंबर 4 इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट। हाउ विल यू फाइंड आउट दिस वन? ये तुम लोग बीच बीच में एक एक लाइन छोड़ना नहीं तो एक पेज पे बैठेगा नहीं, फालतू में बाद में फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। हाउ डू यू फाइंड आउट नेट रियलाइजेबल वैल्यू एवरीबडी? व्हाट माइनस व्हाट? थर्ड कॉलम। क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट लू मैं? हेलो एनीबडी, क्या लिखूं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। पहले में लिखेगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हाउ मच इज अ सेलिंग प्राइस पर यूनिट? इज 20 and 10। फिर लेस क्या करोगे? कमीशन 5%। 5% कमीशन, 20 रुपए का 5% मतलब 1 रुपया, 10 रुपए का 5% मतलब 50 पैसा। तो आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू मिलेगा 19 and 9.50। एनीबडी नेक्स्ट क्या करूं बोलो? प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट मिल गया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट मुझे मिल गया। एनीबडी व्हाट इज द नेक्स्ट वन दैट आई विल डू? क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किस पे करने का? विच एवर इज लोअर। सो राइट डाउन क्लोजिंग स्टॉक टू बी valued at lower of 3 and 4। 3 मतलब सीरियल नंबर 3 लिखना, सीरियल नंबर के लिए ब्रैकेट डालने का, खाली 3 मत लिखना।
वरना तो 3 और 4 में से 3 लोअर है, इसमें लिखने का क्या है? सो इट इज सीरियल नंबर 3 है। बोलो तो प्रोडक्ट ए में कौन सा लोअर है? 13.5। ये रहा देखो, कॉस्ट लोअर है तो यहाँ पे आएगा 13.50। लेकिन सेकेंड प्रोडक्ट में क्या लोअर है? 9.5 द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नंबर 6 आएगा क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। नंबर 6 आएगा क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। बोलो क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स है आपको कहीं पे दिया हुआ है? 2000 यूनिट्स and 3000 units, and therefore last one, number 7, is value of closing stock. Number 7 is value of closing stock. बोलो कैलकुलेशन कॉलम में क्या लिखूं? सीरियल नंबर 5 मल्टीप्लाई बाय सीरियल नंबर 6. So 13.50 into 2000 is how much, everybody? 27,000. 9.50 into 3000 is 28,500. I hope it is clear. Yeah? एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या था, क्या नहीं लेने का? एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग। याद क्या रखने का? जो खर्चे तुम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखते हो, फैक्ट्री के, प्रोडक्शन के, वो सब लेने का। लेकिन जो तुम पीएल अकाउंट में लिखते हो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और भी एक था यार, 3 थे, फाइनेंस एक्सपेंस। सो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, ये सारे खर्चे जब पीएल अकाउंट में लेते थे, you never include that in production cost of your goods. Yes, please. Net selling price. Net selling price. लिख ले बिंदास. Net realizable value is nothing but net selling price. मतलब जो भी सेलिंग प्राइस रहेगा ना, उसमें से क्या माइनस करेगा? कमीशन नहीं, एनी एक्सपेंस इनकर्ड ऑन सेल। सेल में जो भी खर्चा किया रहेगा उसको माइनस कर दे, तेरे को नेट सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, विच इज कॉल्ड एज अ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्लियर एवरीबडी? क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज मेंटेन द स्पीड। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द प्रॉब्लम carefully. बात नहीं करो प्लीज। मैं कैसे ऑन करूं? रिमोट तो पब्लिक के पास है। किधर है? हेलो, पकड़ेगी? क्रिकेट खेलती है? हाँ ले, वेरी गुड, टीम में ले लेना। संभाल के। हो गया? परफेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2, और एक मिला। हो गया? ओके, कैन आई कंटिन्यू? थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज रीड द प्रॉब्लम एंड टेल मी दिस इज विच वेराइटी ऑफ द प्रॉब्लम। पूरा चैप्टर ही वही है भाई, पहले सब में भी स्टॉक ही फाइंड किया था, फाइंडिंग स्टॉक। अब ये चैप्टर के हर प्रॉब्लम में अपन स्टॉक ही तो फाइंड करते हैं, चैप्टर का नाम ही वही है। This is a very peculiar variety of the problem which were done. So many problem. Physical stock verification is not on the balance sheet date,
the physical stock verification is either before or after the balance sheet date. चलो पढ़ते everybody, please concentrate. Mr. Bimal prepares accounts annually on. चल ना भाई प्लीज मत करो ना डिस्टर्ब यार, बहुत शॉर्ट टाइम बचा है, ट्रस्ट मी. कैसा है, मैं एक बार चालू हो जाता हूं ना तो कंट्रोल नहीं होता, फिर मेरे को डिटेल में रिवाइज करना रहता है. सो आई ऑलवेज नीड मोर टाइम. तुम ये नहीं समझना कि तुम्हारी इतनी बड़ी टेक्स्ट बुक में अकाउंट्स खाली 35 पेज है. पेज पे नहीं जाना, टीचर पे जाना है. सारे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा टाइम मेरे को लगेगा, देख लेना तू. तो ऐसा नहीं सोचो 400 में 35. हर एक पेज में लंबी लंबी कहानियां होती है. प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो. Everybody, please concentrate. Very important variety of the problem in valuation of inventory. Mr. Bimal prepares accounts annually on 31st of December, but the stock taking takes place on 6th of January. क्या reason हो सकता है? Because generally stock taking should be on the last day of the accounting year, which is our balance sheet date, which is 31st December. Why Mr. Bimal does the stock taking on 6th January and not on 31st December? 31st के लिए बाहर गया रहेगा, और क्या, ऐसा कोई महान रीजन नहीं है. हर बार क्रिसमस में वो फैमिली को लेके निकल जाता रहेगा बाहर, फिर आराम से आएगा 3-4 तारीख को आएगा. या उसके दुकान में जो लोग काम करते रहेंगे वो लोग अवेलेबल नहीं रहेंगे. बिकॉज फिजिकल स्टॉक टेकिंग टेक्स लॉट ऑफ ह्यूमन एफर्ट. इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. दुकान का शटर डाउन करके लिटरली काउंट करना पड़ता है. एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस दैट यू आर डूइंग, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ द आइटम्स इन स्टॉक. एक एक को लिटरली काउंट करना पड़ता है. पूरा फुल के पेपर पे या एक्सेल शीट पे लिखना पड़ता है कि आपके पास प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी से लेके हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट रहते हैं फॉर अ रिटेल शॉप पर्सन. तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस. तो ये कौन सी वेराइटी ऑफ द प्रॉब्लम है दैट किसी वजह से दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू डू द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन द बैलेंस शीट डेट. या तो बैलेंस शीट डेट के 4 दिन पहले कर लेंगे या तो 6 दिन बाद में कर लेंगे. ये जो मिस्टर बिमल है, he has done the stock taking on 6th of January, which is 6 days after 31st December. So ध्यान से सुनना प्लीज. I need physical स्टॉक. आपने क्या किया था अगर आपको याद रहेगा, इन दिस वेराइटी ऑफ द प्रॉब्लम देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टॉक. One is what we call it as a physical stock, other is what we call as a balance sheet stock. तो मुझे क्या चाहिए, I want physical stock on 31st December. लेकिन मुझे प्रॉब्लम में दिया क्या है पता है, I am given physical stock on 6th of January. How much is a physical stock on 6th January? आपको next line में दिया हुआ है 36,000. The stock in trade on 6th January amounted to 36,000. तो ये फिगर आपको 36,000 दिया हुआ है, लेकिन I am not interested in this figure. I am very much interested in knowing how much was the physical stock on 31st December, which is a date of balance sheet. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जर्नी डिसाइड करना पड़ेगा कि 31st दिसंबर से लेके 6th जनवरी, मतलब 1st जनवरी से लेके 31st दिसंबर, दिस इज एंड ऑफ 31st दिसंबर एंड दिस इज एंड ऑफ 6th ऑफ जनवरी. तो ये 6 दिन में क्या ट्रांजैक्शन हुआ है गुड्स के रिलेटेड. 2 ही ट्रांजैक्शन कैटेगरी है. ट्रांजैक्शन तो बहुत हो सकते हैं पर उसका कैटेगरी 2 ही है, इनकमिंग ऑफ गुड्स एंड आउटगोइंग ऑफ गुड्स. कैन यू टेल मी, फिजिकल स्टॉक ऑन 31st दिसंबर के बाद इनकमिंग ऑफ गुड्स रहेगा, इनकमिंग ड्यूरिंग दैट 6 days पीरियड. द 6 days पीरियड इज 1st January to
6 जनवरी। कोई बताएगा फिजिकल स्टॉक ऑन 31 दिसंबर से अगर मैं स्टार्ट करेगा तो इनकमिंग ऑफ गुड्स में साइन क्या आएगा? लेस। आई एम नॉट गोइंग बैकवर्ड्स, राइट नाउ आई एम गोइंग फॉरवर्ड, सो ऐड हो जाएगा। और आउट गोइंग रहेगा तो, और आउट गोइंग में क्या पॉइंट याद रखने का, यू रिमेंबर, कॉस्ट पे लेना पड़ता है, क्योंकि आउट गोइंग का मतलब क्या होता है, आपने गुड्स को बेचा रहेगा तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड रहेगा, और प्रॉफिट आपको माइनस करना है, कॉस्ट पे लेना है। सो अभी करूं क्या, बोलो ये कैसे फाइंड करने का, आपको रिवर्स होना पड़ेगा। कैसे फाइंड करोगे? Therefore, this is equal to physical stock on 6th of January, फिर ये जो माइनस आउट गोइंग है ना, ये इक्वेशन के राइट साइड में जाएगा तो प्लस आउट गोइंग हो जाएगा, और प्लस इनकमिंग है ये माइनस हो जाएगा। व्हाट इज द वे दैट यू आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन? इज वेरी सिंपल। आपको रिवर्स आना है तो साइन चेंज हो जाएगा। आपको 6 जनवरी का स्टॉक दिया है, आपको रिवर्स जाके 31 दिसंबर का स्टॉक फाइंड करना है। तो अगर रिवर्स जाना है तो आउट गोइंग को ऐड करना पड़ेगा और इनकमिंग को माइनस करना पड़ेगा। राइट डाउन एवरीबॉडी। स्टेटमेंट शोइंग नहीं जाएगा, आप चेक कर रहे थे ना, आई वाज जस्ट हेल्पिंग यू। सो स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक। देखो आपको 4th लाइन में क्या पूछा है, एसरटेन। 4th लाइन में एसरटेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक ऑन 31 दिसंबर। वही आपको टेबल के टॉप पे लिखना है। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक ऑन 31 दिसंबर। लैंग्वेज के ऊपर प्लीज फोकस करना। इसने आपको बैलेंस शीट स्टॉक नहीं पूछा है, इसने आपको सिर्फ फिजिकल स्टॉक पूछा है। मीन्स माई जर्नी। व्हाट इज माई जर्नी एवरीबॉडी? मुझे फिजिकल स्टॉक कौन से डेट का दिया हुआ है? 6 जनवरी का फिजिकल स्टॉक दिया है, और मुझे फाइंड क्या करना है? ये बैलेंस शीट स्टॉक फाइंड नहीं करने को बोला है, ये सिर्फ फिजिकल स्टॉक आपको पूछ रहा है, एंड दैट इज ऑन 31st ऑफ डिसम्बर। आई होप क्वेश्चन इज अंडरस्टूड प्रॉपरली। लेट अस स्टार्ट। राइट डाउन। चलो स्टेटमेंट में आपका कॉलम क्या आएगा, किसी को याद है? सॉरी, पर्टिकुलर सीरियल नंबर नहीं था बट कर सकते हो। पर्टिकुलर्स कैलकुलेशन अमाउंट, देयर वाज अ कैलकुलेशन कॉलम, सो पर्टिकुलर्स कैलकुलेशन अमाउंट। चलो, एनीबॉडी रिकलेक्ट्स what is my first dialogue that I should write? Physical stock as on 6th January. Physical stock as on 6th January. Please write that 36,000. एक ही रुपीस कॉलम है आपके पास, एक ही अमाउंट कॉलम है, so there you write 36,000. ऊपर चाहिए ना तो पेंसिल से लिख देने का। देख, जब सॉल्व करने बैठोगे ना, बार बार सोचने को नहीं होता है, फिर हम गलती कर देते हैं। बोलो आउट गोइंग रहेगा तो क्या करोगे? ऐड करोगे, तो ऊपर लिख दो पेंसिल से, आउट गोइंग ऐड, इनकमिंग लेस। एक बार से देख लेने का कि ये स्ट्रेट प्रॉब्लम है कि ये रिवर्स प्रॉब्लम है। व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेट प्रॉब्लम? स्ट्रेट प्रॉब्लम में स्टॉक वेरिफिकेशन 31 दिसंबर से पहले हुआ रहेगा तो वो स्ट्रेट प्रॉब्लम हो जाएगा। ये रिवर्स प्रॉब्लम है, रिवर्स रहेगा तो आउट गोइंग को ऐड कर देने का और इनकमिंग को माइनस कर देने का। चलो पढ़ते हैं एवरीबॉडी। नंबर 1, सेल्स फ्रॉम 1st जनवरी अमाउंटेड टू ₹4,000। What do you mean by sales from 1st जनवरी से लेके कब तक का सेल है? ये 6 जनवरी तक का। कितना सेल है एवरीबॉडी?
4,000। ये सेल मतलब इनकमिंग क्या आउटगोइंग? तो क्या करोगे? ऐड करोगे पूरा 4,000। क्यों? उसके अंदर प्रॉफिट रहेगा। प्रॉफिट के बारे में आपको लास्ट में दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू टर्नओवर। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड turnover? Sales. Turnover is nothing but sales. So ratio of gross profit to turnover is 30%. What do you mean by this? Is your gross profit 30% on cost price? Because आपको जो प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, ये परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस भी हो सकता है, ये परसेंटेज ऑफ सेल्स भी हो सकता है। कैन यू टेल मी दिस इज 30% ऑफ विच प्राइस? एवरीबडी, सेल्स प्राइस। व्हाट इज दैट? 4,000 सेल्स प्राइस। कैन आई टेक 30% ऑन 4,000? हेलो, लेने दो ना प्लीज। कैन आई टेक? अरे यार, मैं पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करूं वो बताएगा। कैन आई टेक 30% ऑफ 4,000 और नो? वाई? बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑन सेल्स। प्लीज रिमेंबर, समझो 30% ऑन कॉस्ट होता तो ऑब्वियसली आप 4,000 का 30% नहीं ले सकते, बिकॉज 4,000 इज नॉट कॉस्ट प्राइस, 4,000 इज अ सेल्स वैल्यू। इस बार बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑन सेल प्राइस, आप डायरेक्टली 4,000 पे ले सकते हो। बोलो, सो क्या लिखो टेबल में? नेक्स्ट लेस करना चाहते हो कि ऐड? सो राइट डाउन ऐड गुड्स सोल्ड एंड डिलीवर्ड। See, you have to focus on physical movement of goods, because आप physical stock से physical। मुझे बताओ तो, stop writing। समझो गुड्स अभी तक डिलीवर नहीं किया होता तो लेने का कि नहीं? बिल्कुल नहीं लेने का। आई एम नॉट डूइंग अकाउंटिंग, आई एम ओनली फोकसिंग ऑन फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। कि ये 6 दिन में, फ्रॉम 1st जनवरी टू 6th जनवरी, ये 6 दिन में फिजिकली कितना गुड्स बिजनेस में आया, दैट इज इनकमिंग। एंड फिजिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनरशिप। ओनरशिप ट्रांसफर हुआ रहेगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। My focus is not on whether ownership is transferred or no. My focus is only on physically whether the goods are transferred or no. So यहाँ पे सेल है ना, उसके लिए मैं नहीं ले रहा हूँ ये। मैं क्यों ले रहा हूँ? Because no information is given, so I am presuming goods are sold and delivered। उसके लिए मैं इसको add back कर रहा हूँ। So क्या लिखा आपने? वापस बताओ मुझे। add what? गुड्स सोल्ड एंड डिलीवर्ड। कैलकुलेशन कॉलम में क्या लिखोगे? 4,000 माइनस 1,200। 4,000 का आप प्रॉफिट ले सकते हो 30%, दैट इज 1,200। कितना है बताइए? 2,800। ये प्लस हो जाएगा। डू यू एग्री? टोटल नहीं करना है आपको अभी, टोटल सबका लास्ट में ही होएगा। ओके, नेक्स्ट वन, गुड्स सेंट ऑन approval after 31st December at a selling price 3,000। बोलो एनीबडी, क्या करूं इसका? ऐड करूंगा? क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है? हु इज द ओनर? हम ही ओनर है। बट एम आई फोकसिंग राइट नाउ ऑन द ओनरशिप? आप ओनरशिप के बारे में कब सोचोगे? व्हेन you are traveling from physical stock to balance sheet stock. Right now my journey is physical stock to physical stock. I will only focus on physical movement of goods। बताइए therefore यहाँ पे physically क्या हुआ है बता सकते हो? Is it incoming of goods or outgoing? Outgoing। तो क्या करूँ? add। So write down add goods sent on approval। goods sent on approval।
कैन आई राइट फुल 3000? तो कैलकुलेशन में क्या आएगा बताइए? 3000 माइनस 30% मतलब 900, तो बचेगा कितना? 2100. 3 and 4 are connected, so please read 3 and 4 together. थर्ड में क्या दिया है? Purchase made during the above period as per the purchase book amounted to 7000. मतलब परचेस बुक के हिसाब से 7000. अब ये परचेस बुक के हिसाब से मतलब इज इट टॉकिंग अबाउट अ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स और इज इट टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग? अकाउंटिंग. अब हमको चेक क्या करना पड़ेगा कि क्या ये 7000 का पूरा गुड्स हमारे पास आया कि नहीं आया. वो आपको आगे दिया हुआ है. द अबो परचेसेस, अबो ऊपर वाला जो परचेस है 7000 वाला, दैट इंक्लूड्स गुड्स वर्थ ₹1500 विच वेर नॉट actually delivered but invoice was received, and because invoice was received it was recorded in the purchase book. तो 3 and 4 पढ़ के मुझे फाइनली बताओ, is it incoming of goods or outgoing of goods? How much? क्या करोगे? less. Write down less. हाँ अभी डायलॉग बोलो, डायलॉग मारना है. goods purchase and received. Physically you should be receiving that. So goods purchased and received. कैलकुलेशन में इसमें भी प्रॉफिट माइनस करूं क्या? नहीं है. अपने को सिर्फ अपना ही प्रॉफिट माइनस करना है, बाजू वाले का प्रॉफिट नहीं. हमने जिससे खरीदा रहेगा ना उसको श्योरली प्रॉफिट हुआ रहेगा, वो मैं क्यों माइनस करेगा. तो कैलकुलेशन कॉलम में क्या आएगा? 7000 माइनस 1500. So finally आएगा minus 5500. बोलो. So what is the final answer? 35,400. इसके सामने कुछ डायलॉग चिपकाओ. बोलो क्या लिखूं? फिजिकल स्टॉक ऑन 31st December. अगर इस ओके I'll take it. समझो, एक्सक्यूज मी, अगर इसी प्रॉब्लम में आपको बैलेंस शीट स्टॉक पूछा होता या बैलेंस शीट वर्ड भी नहीं दिया रहेगा, खाली स्टॉक बोला रहेगा, तो भी बैलेंस शीट स्टॉक ही लेने का एज फार एज पॉसिबल. तो एनीबडी कैन टेल मी क्या ऐड करना पड़ेगा? 1500, एक ही 1500, दैट्स ऑल. यस प्लीज. क्या लिखना पड़ेगा? एड व्हाट? अच्छा ऐसा सब लिखने का. गुड्स ओन्ड बाय अस बट हेल्ड बाय कस्टमर, ऐसा सब. स्टॉक, कंट्रोल करो भावनाओं को. व्हाट वी वर राइटिंग वो बता सकता हूं मैं. स्टॉक विथ कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस. लाइकवाइज स्टॉक विथ सप्लायर. अस हमारे पास कौन सा स्टॉक है भाई? वो है ना 1500 रुपए का. गुड्स परचेस कर लिया है लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, मतलब या तो वो गुड्स सप्लायर के पास है या तो ट्रक में गाना गाते गाते आ रहा है एंड इट इज स्टॉक इन ट्रांजिट. सो आइदर यू कैन राइट स्टॉक विद सप्लायर और यू कैन राइट स्टॉक इन ट्रांजिट. अगर बैलेंस शीट स्टॉक पूछा होता तो. क्या बोल रहे? तो क्या करूं? मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, लेस करूं? तू बता ना. आंसर यू आर सपोज टू गिव मी, आई एम नॉट सपोज टू. तू सोच के बता क्या करना चाहिए. अच्छा किसी को याद है, चल इसको ये प्रॉब्लम को साइड पे छोड़ो, थियोरेटिकली किसी को याद है ऐड क्या करने का और लेस क्या करने का? आपको फिजिकल स्टॉक से बैलेंस शीट स्टॉक में जाना है. आप ऐड क्या करोगे, लेस क्या करोगे? बोलो. ऑन विच डेट?
So on balance sheet date, was that goods with customer or no? Please think properly. किसके पास था वो गुड्स? हमारे पास ही था, बिकॉज ये गुड्स हमने बेचा कब था? के बाद. ये जो स्टॉक विथ कस्टमर, स्टॉक विथ सप्लायर वाला कब आता है, किसी को याद है? जब हमने स्टॉक वेरिफिकेशन पहले किया रहेगा. योर क्वेश्चन इटसेल्फ इज एब्सर्ड, बट आई वांट यू टू रियलाइज इट. मुझे बता 31st को गुड्स किसके पास था? मेरे पास ही था. सो विल आई अगेन एड इट अ स्टॉक विथ कस्टमर? सो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन. तुम लोग ने ये बहुत रिवाइज किया है कि अभी तक रिवाइज किया ही नहीं है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी. कभी किया था रिवाइज लास्ट, बताओ तो जरा. एक हफ्ते पहले. सच बोलो तो कब किया था? नहीं किया था तो मत बोलो कि नहीं किया था. इट्स ओके. लास्ट नवंबर दिसंबर में ही किया था ना. प्लीज, ये ना बहुत टिपिकल वेराइटी ऑफ द प्रॉब्लम्स है. मैं 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं जो मैं करूंगा, लेकिन घर जाके नहीं नहीं तो मैंने 6 या 7 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे. प्लीज अच्छे से करना. व्हाट वाज योर जर्नी फ्रॉम फिजिकल स्टॉक टू बैलेंस शीट स्टॉक? थियोरेटिकली 2 टाइप के ट्रांजैक्शन थे. एक वो ट्रांजैक्शन वेयर गुड्स आर physically lying with somebody, but I am the owner. On which date? Balance sheet date. तो उसको आप क्या करोगे? ऐड करोगे. What is the second possibility, everybody? Goods are physically lying with us, but owner और कोई रहेगा, तो उसको क्या माइनस करोगे? लेस. अब ये वाला ये सब में क्यों एप्लीकेबल नहीं है पता है? बिकॉज हमने स्टॉक वेरिफिकेशन बैलेंस शीट के बाद में किया है. ये जो आपको बताया, somebody else is the owner and goods are with me, or I am the owner and goods are with somebody, that is applicable in which scenario? Before वाला, which is our next problem, question number 3. तो मैं anyway 3 में डिटेल में डिस्कस करूंगा. Exactly the same. So what is your final answer? क्या लिखा था आपने? Physical stock as on 31st December. Read question number 3. Now that will answer your question properly. ध्यान से पढ़ना question number 3. Small but a very good problem is question number 3. Do you want to try? I'll give you 10 minutes. करो चलो. कुछ लोग इसको ब्रेक नहीं समझना. You decide it. I already answered that question few minutes before. Last line में क्या दिया है? Value of stock. हाँ, so you should try and find out both if it is possible. It depends upon the information given. तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले फिजिकल टू फिजिकल जाना पड़ेगा, फिर फिजिकल टू बैलेंस शीट स्टॉक जाना पड़ेगा. प्लीज ट्राई योर बेस्ट एवरीबडी. कितना है बोल फिजिकल स्टॉक?
Physical stock 21 lakh. Okay. Any other version? दोनों करेक्ट है. फर्स्ट वाला तेरे को फर्स्ट वाला आया. ओके. How many getting this first answer and how many getting this second answer? फर्स्ट में कौन है? 2-3 जन फर्स्ट. ओके. बाकी लोग कर रहे हो, करो. चलो राइट डाउन द आंसर. फिजिकल स्टॉक ये नहीं आ रहा है तेरा. कितना आ रहा है? अरे वाह. 1772. ओके. और अच्छा बैलेंस शीट स्टॉक से. ओके. तो ये थर्ड वर्जन हो गया क्या? Any other answer anybody is getting? चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं यार, फिर टाइम खत्म हो जाएगा. चलो राइट डाउन एवरीबडी. अरे ये सब घर पे करके आना. क्या तेरा आंसर? क्या बोल तो सही. गलत तो गलत ना, क्या फर्क पड़ता है. एक बार चेक करना है, कर ले. You want to change your answer? Okay. क्या आंसर आया? 1966. ओके. 2470 बैलेंस शीट स्टॉक. कैन आई? चलो राइट डाउन एवरीबडी. स्टेटमेंट शोइंग. फेयर आंसर लिखो एवरीबडी. ये बहुत क्लोज है, नहीं चलता यार. 199 और 200 भी बहुत क्लोज है यार. ये बहुत क्लोज क्या होता है यार? मेरे को नहीं मालूम आंसर. वी विल डिस्कस एंड डिराइव. और कोई आंसर है?
अरे रुको, फिजिकल कितना? 20,52,000 फिजिकल स्टॉक, 25,62,000। ठीक है, चलो 4-5 वर्जन तो हो गया। चलो अभी कौन सा राइट है, लेट अस सी। क्या लिखा आपने? स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 29th February 2020। अला 29th February कैसे आया? अच्छा, लीप ईयर है 2020। चलो, हाउ डू यू स्टार्ट? व्हाट्स योर फर्स्ट डायलॉग? फिजिकल स्टॉक on 23rd February 2020. This time the stock verification is before the end of the month. The end of the month is 29th February. चाहिए लोग को 29 फेब का स्टॉक क्यों चाहिए रहेगा? टाइम पास। I mean, don't know. There are some sole traders who can close their books of accounts कभी भी। 30 जून को भी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं, 30 सितंबर को भी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं। जब भी बोर होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं। आई डोंट नो व्हाई वुड दे क्लोज इट ऑन 29 फरवरी, बट वी हैव टू फॉलो व्हाट इज गिवन। ठीक है, चलो। सो व्हाट्स योर फर्स्ट डायलॉग? क्या लिखा आपने? फिजिकल स्टॉक एज ऑन 23rd February 2020, दैट इज हाउ मच? 28 lakhs. स्टार्ट करते हैं एवरीबडी। आउट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स एट कॉस्ट वर्थ 2,30,000 were unsold. First question, how many worth of goods were sent on consignment? What do you mean by goods sent on consignment? अपन कौन है? कंसाइनर है कि कंसाइनी? कंसाइनर मतलब कौन? प्रिंसिपल, द ओनर ऑफ द गुड्स। कंसाइनी मतलब कौन? उसको क्या बोलते हैं? एजेंट, एग्जैक्टली। सो वन इज कॉल्ड एज अ कंसाइनर, द प्रिंसिपल, द ओनर ऑफ द गुड्स। अदर इज कॉल्ड एज कंसाइनी, द एजेंट। अब इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, सो द क्वेश्चन इज हाउ मच वर्थ ऑफ गुड्स वेर सेंट टू द एजेंट। हमने गुड्स कंसाइनी को दिया, काय के लिए दिया? हमने उसको गुड्स बेचने के लिए। डू यू नो कितना गुड्स उसको दिया था? यू डोंट नो दैट, बट goods at cost worth rupees 2,30,000 were unsold. So my question, ध्यान से सुनना please, is there any incoming or outgoing of goods between these two dates, 23rd February and 29th February? ये जो 6 दिन है, ये 6 दिन में is there any incoming or outgoing or no? तो फिर दिया क्यों? ये बैलेंस शीट स्टॉक के टाइम पे दिया है। क्या करोगे? आपको फिजिकल स्टॉक मिल जाएगा। समझो, आपको फिजिकल स्टॉक मिल गया, यू विल गेट द फिजिकल स्टॉक ऑन 29th February। उसमें आप क्या करोगे? क्यों ऐड करोगे? ओन्ड बाय अस, बट फिजिकली दे आर विथ कंसाइनी। इसको आप क्या बोलोगे? स्टॉक विथ कंसाइनी। उसके पास हमारा गुड्स है जो अनसोल्ड है। व्हाट अबाउट रिमेनिंग गुड्स? रिमेनिंग गुड्स ऑलरेडी क्या हो चुका रहेगा? बेच दिया रहेगा। मुझे ये भी नहीं पता, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन कि हाउ मेनी
और हाउ मच वर्थ ऑफ गुड्स वेर सेंट ऑन कंसाइनमेंट. हो सकता है 50 लाख का गुड्स रहेगा, बाकी का गुड्स बिक गया, खाली 2,30,000 का गुड्स ऐसा है जो अभी तक बिका नहीं है. इट इज कॉल्ड एज अ स्टॉक विथ कंसाइनी. अभी ऐड करूं इसको कि बाद में? बाद में तुम्हें भूल जाएगा. तो नीचे पेंसिल से लिख के रखने का, प्लस स्टॉक विथ कंसाइनी. और ये जो 2,30,000 है ये क्लियरली दिया हुआ है, कॉस्ट है. सो 2,30,000 एड स्टॉक विथ कंसाइनी, ये हम बाद में कभी करेंगे. चलो आगे बढ़ते हैं एवरीबडी. यहाँ किसी का कुछ गलती हुआ था? बिकॉज मार्केट में 5-6 आंसर घूम रहे हैं. सो एनीबडी डिड द मिस्टेक हियर? ये सबका राइट गया? ओके. नेक्स्ट एवरीबडी. Purchase of rupees 3 lakh were made, out of which goods worth 1,20,000 were delivered on 5th of the March 2020. और अपना जो कट ऑफ डेट है वो है 29th of February. ये 3 लाख का परचेस हमने कब किया? कहाँ दिया ऐसा? ये ऊपर नीचे क्या लाइन नंबर बोलने यार. ऊपर क्या इधर इधर देखूं मैं? सेकेंड लाइन में क्लियरली दिया है, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस बिटवीन दिस टू डेट्स, 23rd फरवरी से लेके 29th फरवरी. बोलो तो क्या करूं इन शॉर्ट? क्या सोचोगे? हाउ इज योर थॉट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट यू विल थिंक ओनली अबाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स. कोई बता सकता है इज इट इनकमिंग और आउट गोइंग? हाउ मच? ओनली 1,80,000. क्या करोगे? ऐड करोगे. सो राइट डाउन ऐड गुड्स परचेस्ड एंड रिसीव्ड. इनकमिंग को ऐड क्यों कर रहे हो? आपको पता है ना ये स्ट्रेट प्रॉब्लम है, रिवर्स वाला नहीं है. यू आर गोइंग फ्रॉम 23rd फरवरी टू 29th. ये स्ट्रेट प्रॉब्लम है. तो इनकमिंग ऑफ गुड्स को ऐड करना है, आउट गोइंग को माइनस करना है. कितना ऐड किया आपने बाय द वे? 1,80,000. हाँ अब बताओ, इज देर एनीथिंग एल्स इन दिस के नंबर 2 हो गया? 1,20,000 क्या है? स्टॉक विथ सप्लायर. बट हु इज द ओनर? वी आर द ओनर. तो क्या करोगे? नीचे लिख दोगे एड स्टॉक विथ सप्लायर. Add stock with supplier, that will be 1,20,000. Anybody got this wrong? क्या यार, तो सबका आंसर अलग अलग ऐसे ही आ रहा है क्या? क्या आगे के ट्रांजैक्शन की वजह? थर्ड की वजह से. ओके. थर्ड एंड फोर्थ आर कनेक्टेड. डू यू रियलाइज और यू फील दे आर डिफरेंट? कनेक्टेड है. चलो ठीक है, तो फिर दोनों कनेक्टेड है तो साथ में पढ़ते हैं. क्या दिया थर्ड में? Sales were rupees 13,60,000, which includes goods worth rupees 3,20,000 sent on approval basis. Half of these goods were already returned before 29th of February, but no intimation or no information is available remaining regarding the remaining goods. Goods are sold at cost plus 25%. मतलब आपका जो प्रॉफिट का मार्जिन है, इट इज कॉस्ट प्लस 25%. समझो मेरा कॉस्ट अगर 100 रुपए का रहेगा तो प्रॉफिट है 25 रुपए का, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 125 का आएगा. देयरफॉर माय प्रॉफिट 25 का प्रॉफिट है. अगर इसको मैं 100 के कॉस्ट के साथ कंपेयर करेगा, देन इट इज 25% ऑन कॉस्ट प्राइस. बट इफ आई कंपेयर दैट विद द selling price, then it is 25 upon 125 into 100. This will be 20% on selling price. तो आपको प्रॉफिट का मार्जिन दिया हुआ है. प्रॉफिट इज 25% on cost price, which is as good as 20% on selling price. ये ठीक है? This is called as a
नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन, ध्यान से सुनना, all the goods are sold at a normal profit margin except only one, and which is that one? दिया हुआ है आपको. However, goods costing rupees 2,40,000 had been sold for rupees 1,50,000. मतलब ये बोल रहा है कि मेरा जितना भी सेल है ये सब सेल मेरा नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन पे हुआ है. व्हाट इज माय नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन? इज 25% ऑन कॉस्ट प्राइस विच इज एज गुड एज 20% ऑन सेलिंग प्राइस. अब ये मार्केट में जो इतने सारे आंसर घूम रहे हैं उसका मेजर रीजन है कि ये जो सेल है दिस इज कॉल्ड एज सेल ऑफ एबनॉर्मल गुड्स. इज दिस सेल in addition to the total sale of 13,60,000 or is this sale part of that 13,60,000? ये प्रॉब्लम में बहुत क्लियरली नहीं दिया है तो आपको assumption करना पड़ेगा. And I have no reason to believe that this sale is not the part of that 13,60,000. So I am assuming. What am I assuming, everybody? ये जो 1360 दिया है ये पूरा आपको सेल दिया हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रॉम 23rd फरवरी टू 29th फरवरी. आई एम अस्यूमिंग द सेल ऑफ एबनॉर्मल गुड्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द टोटल सेल ऑफ 13,60,000. आई एम assuming because the language is not so clear. So I am assuming कि उसका टोटल सेल 13,60,000 का है, उसमें से मेजॉरिटी गुड्स आर सोल्ड एट अ नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन विच इज 25% ऑन कॉस्ट एंड देन 20% ऑन सेलिंग प्राइस. बट there are some abnormal goods which are costed 2,40,000 but had been sold for rupees 1,50,000. अब हम क्या करेंगे, हम सेल्स के टुकड़े करते हैं. How much is the total sales given to us? 13,60,000. मैं क्या करेगा इसका? Anybody, how many parts of this? 3 parts of it obviously. Part 1, Part 2, Part 3. What is Part 1? Its goods are sent on approval basis. How much worth goods are sent on approval basis? Is 3,20,000. My first question to you, और बहुत ध्यान से सुनना, what is this 3,20,000? Is it the cost price of these goods or is it selling price? Is the language confusing or is it clear? Very clear. Sales were rupees 13,60,000, which includes goods worth rupees 3,20,000 sent on approval. Definitely a selling price है. इसमें से मैं क्या करेगा, आधा गुड्स तो माइनस कर दूंगा. क्यों माइनस कर दूंगा? बिकॉज these goods were sent and returned within those 6 days period only. Between 23rd to 29th मैंने 3,20,000 का गुड्स भेजा, उसमें से 160 रिटर्न आ गया. मतलब नेट मैंने कितना गुड्स भेजा is 1,60,000. This is incoming or outgoing. Outgoing, do you agree? तो क्या करोगे outgoing को? लेस करोगे. Will you less at 1,60,000? Why? Because ये selling price है. How much is a profit as a percentage on selling price? 20%. तो इसमें से आपको 20% माइनस कर देना पड़ेगा. Yes or no? So क्या करूं बताओ? Less के add. Why? Outgoing. So write down less. Goods sent on approval
ब्रैकेट में लिखो नेट. व्हाट डू यू मीन बाय नेट एवरीबडी? वो जो रिटर्न आया, नहीं ग्रॉस प्रॉफिट के लिए नेट नहीं लिख रहा हूं मैं, वो जो रिटर्न आया वो माइनस करके लिख रहा हूं. वरना आपको क्या करना पड़ेगा, गुड्स सेंट को आउटगोइंग दिखाना पड़ेगा, रिटर्न को इनकमिंग दिखाना पड़ेगा. वेस्ट ऑफ टाइम है, डायरेक्टली नेट लिख सकते हैं आप. कैलकुलेशन कॉलम में कुछ दिखाना पड़ेगा. एनीबडी? 1,60,000 माइनस 20% प्रॉफिट मार्जिन मतलब कितना आएगा बोलो? 1,28,000 को आप क्या करोगे? लेस करोगे, तो लेस करोगे 1,28,000. इस सेल और रिटर्न ओवर मतलब ये जो अप्रूवल वाला था कि उसका कुछ बाकी है. क्या बाकी है? स्टॉक में ऐड क्यों होगा? क्योंकि ये गुड्स अभी है किसके पास? क्या ये कंफर्म सेल है? क्यों, कैसे पता चला कि कंफर्म सेल नहीं है? क्लियरली दिया हुआ, बट नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द रिमेनिंग गुड्स. ना कस्टमर ने अभी तक ये गुड्स कंफर्म किया है, ना उसने वो रिजेक्ट कर दिया है, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है. सो दीज आर द गुड्स physically lying where everybody? With customer. Who is the owner of these goods? We are the owner. तो ऐड करेंगे स्टॉक विथ कस्टमर, वो भी नीचे पेंसिल से लिख दो. ऐड स्टॉक विथ कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस. Stock with customer on approval basis, and the amount is 1,28,000. Anybody got this wrong? If yes, please share what is the mistake done. Sorry, you took what on 320? सेल्स इंक्लूड्स ना, तो मतलब सेल के अंदर इंक्लूड है. और आपको पता है सेल और रिटर्न सेल में क्यों इंक्लूडेड है? बिकॉज इट इज नॉर्मल अकाउंटिंग प्रैक्टिस. मैंने फाइनल अकाउंट चैप्टर में बताया था कि वेन एवर गुड्स आर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, इट इज फॉर वंस ट्रीटेड एज अ कंफर्म सेल एंड इंक्लूडेड इन द सेल. ओके, एनी अदर मिस्टेक एनीबडी? या 13,60,000 का. दैट वॉज वेरी एडवेंचरस, बट यू रियलाइज ना. ओके, आगे बढ़े. हाँ चलो, अब तुम्हारा सेल में दूसरा कौन सा सेल है? ये फर्स्ट सेल कौन सा हो गया एवरीबडी? सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस. सेकेंड है मेरा सेल ऑफ एबनॉर्मल गुड्स. सेल ऑफ एबनॉर्मल गुड्स. कोई बताएगा ये जो एबनॉर्मल गुड्स है उसका कौन सा अमाउंट सेल के अंदर इंक्लूडेड रहेगा? ओनली 1,50,000. डू यू एग्री? क्योंकि उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 1,50,000. लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस कितना है एवरीबडी? इज 2,40,000. डू यू एग्री? बोलो. तो सेल ऑफ एबनॉर्मल गुड्स वंस अगेन, इज इट इनकमिंग और आउटगोइंग? आउटगोइंग. क्या करोगे इसको? लेस करोगे. सो राइट डाउन लेस. सेल ऑफ एबनॉर्मल गुड्स. नाउ बी वेरी केयरफुल. जब इसको लेस कर रहे हो, you will be taking which price everybody? Cost price exactly, which is 2,40,000. तो 240 को आप क्या करोगे? वंस अगेन ऐड करोगे कि लेस करोगे? लेस किया ना, 2,40,000. अब क्या मिलेगा मुझे बताओ? सेल ऑफ नॉर्मल गुड्स. ये मेरा बैलेंस बचेगा. Anybody, how do I get sale of normal goods? 1360 में से 3,20,000 मैंने अप्रूवल पे दिया था और 150 is a sale of abnormal goods. Anybody, how much is the sale of normal goods? Anybody?
8,90,000। ये तुम्हारा नॉर्मल गुड्स है, तो इसके ऊपर नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन लगेगा। नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन 20% है सेल के ऊपर, सो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। एनीबडी, हाउ मच द कॉस्ट प्राइस? 7,12,000। ये भी आपका सेल ऑफ नॉर्मल गुड्स इज ऑल्सो आउट गोइंग ऑफ गुड्स। क्या करोगे आप? इसको लेस करोगे, लेस सेल ऑफ नॉर्मल गुड्स, लेस सेल ऑफ नॉर्मल गुड्स। और कितना लेस करोगे एवरीबडी? कैलकुलेशन कॉलम में दिखा दो। 8,90,000 minus 20% is how much everybody? 7,12,000। बोलो पहले आपको फिजिकल, वी आर डन विथ ना, हो गया ना? बोलो फिजिकल स्टॉक एनीबडी? 19 lakh, that answer number 1. So write down physical stock as on 29th February 2020. Physical stock as on 29th February 2020। इसमें अपने को कितना फिगर्स ऐड करना था? बोलो फर्स्ट क्या था? ऐड व्हाट? स्टॉक विथ कंसाइनी। सो राइट डाउन एवरीबडी, add stock with consignee. That is how much? 2,30,000। सेकेंड क्या था बताइए? add stock with supplier. Add stock with supplier. That was how much everybody? 1,20,000. And finally, the stock with customer on approval. Stock with customer on approval is 1,28,000. So you will get value of stock on 29th February is 23,78,000। क्वेश्चन नंबर 4 एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उसको होमवर्क ट्राई करना, उसका आंसर लिख लो। 58,824। जब क्वेश्चन भी पता होता है, आंसर भी पता होता है, then we very well know how to solve it। या फिर भी ईमानदारी से सॉल्व करना। कुछ क्वेरी रहेगा तो मैं नेक्स्ट टाइम सॉल्व कर देगा। वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 2 सबने किया है, उसका भी अगर कुछ क्वेरी रहेगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में विदाउट फेल सॉल्व कर देगा। नाउ नेक्स्ट लेक्चर सुन लो, लास्ट 1 मिनट बोलना है। सो नेक्स्ट लेक्चर 3 टिपिकल प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स आई वांट टू डू। एक ही लेक्चर में मेरे को तीनों सम करना है। जो मैं नहीं कर पाएगा, ए तुम लोग पैकअप बंद करो ना। I won't be able to do that unless 2 things are done as homework apart from format. एक तो ट्रायल बैलेंस को क्लासीफाई करके आना प्लीज। टिड्डी, पिड्डी, बा, यू नो, क्लासीफाई करके आना, मरीबा। और सेकंड क्या करके आना है? एडजस्टमेंट्स पढ़ के आना। पढ़ते टाइम पे मन में तुम बहुत बड़बड़ करोगे मेरे लिए, ऐसा अब थोड़ी पूछा है, यू नो, थोड़े टिपिकल। देख सेम सम करके ना, मैं तुम लोग की बैच में फाइनल अकाउंट के 60-70 सम कर चुका हूँ बिटवीन 11th and 12th। सोचा थोड़ा कुछ अड़ंग तड़ंग करते हैं, तो एडजस्टमेंट अच्छे से पढ़ना और खाली ट्रायल बैलेंस में मार्किंग करके आना। 3 प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनल अकाउंट, एवरीबडी विदाउट फेल, फॉर्मेट, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स का जितना तुमको समझ में आता है मार्किंग करना। पूरा फाइनल अकाउंट मस्त रिवाइज हो जाएगा व्हेन यू विल डू दिस 3 प्रॉब्लम्स। या
Thank you.